हम भी आए हैं। ओके, प्रेज लॉर्ड जैमिस्ट्री सारा ने खुदावन ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Lord ਖੁਦਾਵੰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰ Lord Jesus। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰ Lord Jesus ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰ Lord Jesus। ਹਰ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Oh Lord Jesus ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ Lord Jesus ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। खुदावंद तेरी तारीफ 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 ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरी तारीफ होवे ते धन्यवाद होवे। हालेलुया। खुदावंद तू सानू समा दिता। खुदावंद ਅਸੀਂ तेरी हजूरी ਚ ਆ ਸਕੀਏ। खुदावंद तेरी महिमा ਦੇ गीत गा ਸਕੀਏ। खुदावंद तेरे बचन ਨੂੰ पढ़ ਸਕੀਏ। खुदावंद तेरा धन्यवाद ਕਰਦੇ। खुदावंद तेरे प्यार वास्ते, तेरे खुदावंद दया वास्ते, खुदावंद तेरी मोहब्बत वास्ते लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद। खुदावंद तेरा धन्यवाद। खुदावंद तू ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद। हालेलुया, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। ਖੁਦਾਵੰ Lord Jesus ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰ Lord Jesus, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਖੁਦਾਵੰ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਸੁਣਿਆ ਖੁਦਾਵੰ Lord Jesus ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Lord। Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। Hallelujah, thank you Lord। ਖੁਦਾਵੰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ Lord Jesus। ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰ Lord Jesus। Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। Hallelujah Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord। ਖੁਦਾਵੰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਿਸਟਰ ਸਾਰਾ ਨਾਲ। Hallelujah, praise the Lord। जी ठीक है। बाबर कुछ नाम अक्षर का मौका थे आप हाजिर हैं। आगे पाकराम को पंडा के प्रतिष्ठित करने लगे इस वक्त हम देकर सजा करते हैं। आप सब कहा तो हम सबको रख दीजिएगा। इस पूरे पेमेंट का हॉल ना कहा तो हम देते हैं। आप किसी भी तरह के इंटरप्शन है हम सब कहा था हम जो पाकराम सुने आप हमारे बात से बढ़कर हम जितनी प्रतिष्ठित करें आपको पसंद है। आप जितनी दुआएं जाया करें आपको पहुंचेंगे जो मुझसे मिले। आप हम सब कहा तो हम सबको बख्श दीजिएगा। मेरी छोटी सी दुआ को सुनिए कबूल कीजिए। सुमसी नास्ते के नाम है, आमीन। Amen. Praise the Lord. Thank you, Sarah. God bless you. सिस्टर Hallelujah. सोनिया, हाँ जी। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे लिए सब अभी प्रेयर करें। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। Okay, sister जी, okay. Okay, ठीक है। Sister जी, बड़े sister जी, दस्ती pray करोगे हमारे वास्ते? Okay. मेरा ख्याल आप सभी आप अपने माइक को अनम्यूट करें, हम सब मिल के करते हैं। जरूर साथ दें। दीदी ने पहले ही बताया था कि इसका बीपी हाई हो रहा है ना दीदी? हाँ जी मामी, हालेलुया, इतना ज्यादा हो रहा है कि मेरा दिल खराब हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस ओरे शिक्रे कत्रिया रे बेसेंदरिया ओरे बेशेरे बेरे 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 सरारा शक्करा कत्तरा कत्तरा रे बेरे 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 बे हालेलुया, हालेलुया। रे शेरे बेरे 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 सक्करा कत्तरा कत्तरा ओरे बेरे 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 शेरे बेरे 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 संदरा 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। Ora baraba shere bere 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 sandara sandara sigara shakara katara katara ore bere 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 be sandara 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 hallelujah 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 raba 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 sandara sandara hallelujah hallelujah sandara 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 shikere ketere katere katere re shere bere 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 sandara hallelujah hallelujah खुदा तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ है बाप खुदा
तेरी हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे लहू के लिए खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरे नाम के लिए खुदावन यीशु तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तूने हमें अपना नाम दिया, अपना लहू हमारी शफा की खातिर बहाया, उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरी बेटी को दीदी को खुदावन सर से लेके पाँव के तलवे तक खुदावन यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदावन अपनी बेटी को छू यीशु के नाम से, इस हाई ब्लड प्रेशर की रूह को, बदरूह को यीशु के नाम से इसके बदन के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से। खुदा इसका कोई इख्तियार नहीं है कि ये तेरी बंदी के बदन को छुए। खुदावंद उसको दर्द दे, उसको तकलीफ में से गुजारे यीशु के नाम से। खुदावंद सारी इसके सारे असर को, जो इसका दिल खराब हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, जो तबीयत खराब हो रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्लड प्रेशर की सारी तासीरों को, उसके असर को यीशु के नाम से तेरी बेटी के बदन के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से। बाप अपनी बेटी को छू, बरकत दे खुदा हील कर यीशु के नाम से। शिफा खुदा तेरी बेटी के रूह बदन जान में दौड़ जाए यीशु के नाम से। खुदा एकदम से खुदा बिल्कुल अपनी बेटी को ठीक कर दे खुदा इसका कोई असर बाकी ना है यीशु के नाम से। इस सारी बदी की तासीरों को, इस बदरूह को यीशु के नाम से मैं बांधती हूँ और तेरी बेटी के बदन के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से। खुदा मुकम्मल शिफा आए, बहाली आए, आजादी आए खुदा यीशु के नाम से। खुदा तेरी बेटी खुदा गवाही दे के मेरे खुदा ने, मेरे यीशु ने खुदा मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदा शिफा को खुदा तूने रिलीज कर दिया है। खुदा तूने अपनी बेटी को मुकम्मल शिफा दे दी है। हमारा तुझ पे ईमान है खुदा, तेरी तसल्ली, तेरा इत्मीनान, तेरी खुशी, तेरी शादमानी, तेरी बहाली, तेरी आजादी यीशु के नाम से तेरी बेटी के बदन के अंदर दौड़ जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा इसी वक्त खुदा तू छू अपनी बेटी को और मुकम्मल शिफा आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदा इस दुआ को खुदा बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। Amen. Amen. आमीन। Thank you. Thank you so much. आमीन। Praise the Lord. हाँ जी, praise the Lord. Thank you sister जी। हालेलुया। और ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, praise the Lord. आते वेले तेरी यहोवा दुखाते वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा है कल तो अपनी गले तेरे वास्ते मदद है कल तो अपने गले तेरे वास्ते मदद। सहून विचों आपी संभाले तेनू सदा। सहून विचों आपी संभाले तेनू सदा। कुर्बानी तेरी सारी करे आपियो कबूल। कुर्बानी तेरी सारी करे आपियो कबूल। ते नज़रां तेरी आनो
भी ओ याद करेगा। ते नज़रा तेरियां नू भी ओ याद करेगा। बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद। बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल दी है मुराद। पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा। पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा। गावांगे गीत या रब्बा तेरी नजात दे। गावांगे गीत या रब्बा तेरी नजात दे। झंडा करांगे अपने खुदावंद दा खड़ा। झंडा करांगे अपने खुदावंद दा खड़ा। दरखास्तां ओ तेरियां पूरी करेगा या। दरखास्तां ओ तेरियां पूरी करेगा या। अपने जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा। अपने जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Amen. Hallelujah. Thank you, Sister G. God bless you. ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਰਸ ਪੜੂੰਗੀ ਜ਼ਬੂਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਤਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੜੀ ਸੰਤਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਰ ਵੀ ਕੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਨੀਦਾ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਨੀਦਾ ਜੀ। Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की। खुदाया तेरी रूह में बलानस के किधर जावा। हुजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफनो नसा। मैं चढ़ जावा जिसमा ना दे उते
होते है तू ही। मैं चढ़ जावां जी आसमां ना दे होते होते है तू ही। बचावां बेसरा पाता ले दे विच होते है तू ही। खुदाया तेरी रूह मैं भला नस के किधर जावा। समंदरों पार जा उतरा सुबह दे पंखानू पहला। समंदरों पार जा उतरा सुबह दे पंखानू पहला। ते उथे भी तेरा हथ मैनू यारब रब खावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी। तेरा हथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी। तेरा हथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। जे मैं आखा के मैनू गुप हनेरा उन छुपावेगा। जे मैं आखा के मैनू गुप हनेरा उन छुपावेगा। मेरे गिरदे हनेरा वीत दो चानन हो जावेगा। मेरे गिरदे हनेरा वीत दो चानन हो जावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी नहीं है। सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी। हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी। हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हुजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तड़पनू ना। हाँ जी, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर जी। आगे मम्मी जी गीत गाओगे? मम्मी जी हाँ जी हाँ जी, तुसी गीत गा। ठीक है। जानी बीमारिये जशुदा लहू आ गया। जानी बीमारिये जशुदा लहू आ गया।
तू ही मेरी जिंदगी ते तू मेरी बंदगी, तू मेरी जिंदगी ते तू मेरी बंदगी, तू मेरे जीने दी बजाए, जानी बीमारिये यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारिये यीशु दा लहू आ गया। खुशी दियां आवाजां मेरे कन्नां विच पैणगीਆਂ, खुशी दियां आवाजां मेरे कन्नां विच पैणगीਆਂ। हुण ना मेरे ते सदा अदासियां रहणगीਆਂ, हुण ना मेरे ते सदा अदासियां रहणगीਆਂ। मेरी खुशी नू हुण रोक के दिखा, जानी बीमारिये यीशु दा लहू गया आ, जानी बीमारिये यीशु दा लहू गया, जानी बीमारिये। तू ही मेरी जिंदगी ते तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जिंदगी ते तू ही मेरी बंदगी, तू मेरे जीवन दी बजाए, जानी बीमारिये यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारिये यीशु दा लहू आ गया। चेते कर दियां तेनू यीशु नाम ने हराया सी, चेते करदियां तेनू यीशु नाम ने हराया सी, यीशु दे लहू ने तेनू जड़ी तू मकाया सी, यीशु दे लहू ने तेनू जड़ी तू मकाया सी। मेरी हुण खुशियां नू रोक के दिखा, जानी बीमारिये यीशु दा लहू गया आ, जानी बीमारिये। तू ही मेरी बंदगी ते तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी ते तू ही मेरी जिंदगी, तू मेरे जून दी बजाए, जानी बीमारिये यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारिये यीशु दा लहू आ गया। मेरे कोल यीशु नाम तेरे कोल की है, मेरे कोल यीशु नाम तेरे कोल की है, तेरे कोल मौत है तां मेरे कोल जिंदगी, तेरे कोल मौत है तां मेरे कोल जिंदगी, तेरी हुण जिंदगी दा आखरी समां ऐ, जानी बीमारिये यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारिये। मेरे कोल यीशु नाम तेरे कोल की है, मेरे कोल यीशु नाम तेरे कोल की है, तेरे कोल मौत है तां मेरे कोल जिंदगी, तेरे कोल मौत है तां मेरे कोल जिंदगी। मैनू हुण आजाद नू कैदी क्यों लऊंगी बना, मैनू हुण आजाद नू कैदी क्यों लऊंगी बना, जानी बीमारिये यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारिये यीशु दा लहू आ गया। तू ही मेरी बंदगी ते तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी ते तू मेरी जिंदगी, मेरे हुण जून दी बजाए, जानी बीमारिये यीशु दा लहू आ गया, जानी बीमारिये। खुशी दियां आवाजां मेरे कन्नां विच पैणगीਆਂ, खुशी दियां आवाजां मेरे कन्नां विच पैणगीਆਂ, हुण ना सदा मेरे ते दासियां रहणगीਆਂ, हुण ना मेरे ते सदा दासियां रहणगीਆਂ। मेरी हुण खुशियां नू रोक के दिखा, जानी बीमारिये यीशु दा लहू गया आ,
जानी बीमारी। हालेलुया, धन्यवाद प्रेज लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, sister ji. Sister ji, God bless you. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ थैंक यू। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ हालेलुया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਲੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਤਹ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਹੋਲੀਨੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਉਹ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਥਰਥਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो उस खुदावंद दा शुक्र अदा करना कि अज ओदे लहू च कुवत है, ताकत है, शिफा है, बहाली है, मौजन है। खुदावंद दा शुक्र करने आ। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद तेरे नाल होवे, तुहानू बड़ी बरकत देवे, तुहानू इस तरह इस्तेमाल करदा रहे। सो अगे असी हुण अगे कलाम लई अपने आप नू असी तैयार करने आ। आओ असी सारे अपने आप नू कलाम लई तैयार करिए और खुदावंद दे साडे पास्टर ने मैसेज किया लास्ट संडे किया कि बाइबल मुकद्दस खुदा दा ज़हन है। बाइबल मुकद्दस की है खुदा दा ज़हन है, खुदा दा माइंड है। सो आओ असी इस माइंड नू इस ज़हन नू जानन लई असी भी अपने आप नू तैयार करिए, असी भी अपने ज़हन नू अपने सोचां नू असी ओदे कंट्रोल च दवांगे ताकि असी खुदा दे ज़हन दे मुताबिक ओदी जड़ी है आवाज नू असी अपने दिल दे विच लै सकिए, ओदी सोच दे मुताबिक जैसा ओदा उन्हें कहा है कि पाक बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। सो आओ असी पाक होने लई जरूर है कि बाइबल मुकद्दस नू असी जानिए, बाइबल मुकद्दस दे वचनां ते असी खड़े होइए, बाइबल मुकद्दस नू असी अपनी जिंदगी विच अपने घरां विच पढ़िए और उच्चा करिए और इस सलीब नू ओदे वादियां ते असी खड़े होइए। सो आओ अज असी एक दफा फिर ओदे कलाम ते असी खड़े होने आ और मैं सिस्टर शाहीन नू दावत देनी आ कि ओ आन ते खुदा ने जो भी अज उन्होंने खुदा ने जो भी उन्हां दे नाल कलाम कीता, जो भी खुदा ने उन्हां दे जरिए बोलिया वे पाक नू उन्हां दे जरिए बोलिया वे। सो अज ओ साडे नाल शेयर करन खुदा दे वादियां नू, ओदी होलीनेस नू, ओदी पाकीज़गी नू, ओदे वादियां दी सच्चाइयां नू साडे उत्ते खोलन ओदी पाक दी रहनुमाई नाल। सो सिस्टर शाहीन आनगे और सानू वचनां दे नाल और कलाम दे नाल सानू शेर ते आसुदा करनगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा का मसा हमारे दरमियान ठहरा हुआ है, खुदा की हुजूरी मेरा ईमान है कि आप सब ने महसूस की होगी गीतों में, दुआओं में कि खुदावंद हमारे दरमियान है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं शुरू करने से पहले अगर सनिया बिक्की ने टेस्टमनी देनी है तो वो दे सकते हैं। जी भाभी जी, वो अगर अभी नहीं तैयार तो बाद में देना। हाँ जी बाजी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जी बिक्की। बाजी टेस्टमनी में देना चाहूँगा कि तकरीबन कोई 7 डेज से जो मुझे फीवर था, तो मेडिसिन तो मैंने बहुत ली है, बहुत जो है ना खाई है, इलाज भी करवाया, लेकिन ये है कि कल जो है ना ऐसा मैंने खुद भी बाकायदा अपने लिए प्रे की कि खुदा आप मुझे आप शिफा दें, और तमाम ग्रुप मैंने सबकी प्रेज भी सुनी, और पता नहीं कल एक ना दिल में जैसे वो था कि आज आपको ना आपने ठीक हो जाना है, तो आप आज आप ठीक हो जाएंगे। हत्ता कि वही मेडिसिन मैं खा रहा था, वही मेडिसिन मैं ले रहा था, तो
कोई अफेक्ट नहीं हो रहा था। आता कि इतनी एंटीबायोटिक्स, इतने इंजेक्शन डेली के वो लगा रहे थे मुझे और इतनी ड्रिपें लगा रहे थे। तो वही, लेकिन कल कुछ ऐसा बस दिल में मेरे भी कुछ ऐसी ना, जैसे कोई कह रहा था कल कि आज आपको शिफा मिल जानी है। तो वही 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 ठीक टाइम, जिस टाइम प्रे हो रही थी ना, उसी टाइम मुझे उस टाइम वो एंटीबायोटिक्स और ड्रिपें लग रही थी वहां पे। लेकिन दिल में वही बात थी कि आज आपको शिफा मिल जानी है। तो मैं बिल्कुल उठा हूँ जो उन्होंने किया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपका ना कल आपने आके मजीद अपना जो है ना आखिरी डे आपने वो भी पूरा करना। तो मैंने दिल में मैंने कहा डॉक्टर साहब होन लोड नहीं। ते प्रेज गॉड। मैं बड़े मजे से उठा हूँ। तो ऐसे बाइक पे बैठा हूँ, तो बच्चे भी साथ, सानिया भी साथ बैठे हैं। तो एक ना जब मैंने स्टार्ट करके तो मैंने जो है ना खुदा का शुक्र किया। तो सब दिल में सबके लिए थैंक यू बोला और शुक्रगुजारी की और किक मारी और जो है जा रहा था और ऐसे महसूस जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो वहां से सारा घूम फिर के जो है ना वापस घर आ गए। तो सानिया का कुछ फीलिंग हो रही? मैं कहा जी मुझे अभी जो है ना कुछ भी फीलिंग नहीं हो रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वही रात को प्रेज मैं वही सुबह उठा हूँ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल जिस्म हो गया। हत्ता कि ये था कि बाजी मैं इतना मतलब मेरे ऊपर ये चीज हावी हो चुकी थी कि मैं खुद उठ के जा नहीं पा रहा था कि यार कि मैं खुद उठ के चला जाऊं, जाके दवाई ले आऊं। इतना मेरी मतलब जो है ना हैवी किस्म का और पता नहीं क्या था, मुझे नहीं समझ आ रही थी। इतना तेज फीवर के 103 102 103 इससे नीचे आ ही नहीं रहा था कि इससे कम हो जाए। तो शुक्र है खुदा का जो बस कल वो पता नहीं कैसे मुझे ऐसी फीलिंग पहले आई भी नहीं। और ऑनेस्टली मैंने अपने लिए तो दवा जो ये बुखार के दौरान तो मैंने अपने लिए की भी नहीं ना, कि ऑनेस्टली कि मैं कि दिल भी मेरा कर जाए कि अपने लिए मैं दवा चुप करके बस मैं लेटा रहता था, बस दर्द में तकलीफ में कुछ समझ नहीं आती थी। बस जो है ना सर ऐसे जैसे किसी ने पकड़ा हुआ ऊपर से जोर से, इतना दर्द करता था कि कुछ करने दे ही नहीं रहा था वो मुझे। लेकिन कल जो है ना कल मुझे फीलिंग हो रही थी कि यार कि तू जो है ना तू भी प्रे कर ले। तो मैंने बस मेरी आंखें बंदी थी, तो मैं बस उसी में जो मुंह में वर्ड्स आए बस बोलता रहा, दुआ शुफा मांगता रहा जीसस से। तो फिर कुछ देर बाद जो ही हल्के हल्के शाम में मेरा फीवर थोड़ा सा तेज हो रहा था, लेकिन दिल में एक बात आ रही थी कि आपको शफा मिलनी है आज। तो वो जो दिल में बात थी ना, तो उससे थोड़ा सा हौसला सा बढ़ रहा था कि नहीं मैंने आज ठीक हो जाना। तो वही बात हुई, वहां से गया हूँ। तो उसके बाद जो है ना खुदावन ने मुझे बस उसके नाम को जलाल होना, और मेरे खासकर मेरे जो ग्रुप वाले जो हमारे फैमिली मेंबर है सबके लिए बहुत थैंक यू, जिन्होंने इतनी प्रे की कल मेरे लिए। बहुत जो है ना शुक्रिया सबका। प्रेज गॉड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद God bless you. प्रेज गॉड। हालेलुया। हमारा खुदावंद बड़े बड़े काम करता है, तो ये सर दर्द बुखार तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। प्रेज गॉड। खुदावंद आपको बरकत दे और मुकम्मल शिफा आपके बदन में दौड़े। प्रेज गॉड। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावंद लो ये हाँ रोटी, जी। सॉरी रोटी और पानी के लिए प्रेयर कर दे अभी। ओके ओके। हाँ श्रेया सॉरी, आप ना याद करा दिया करो, मैं ना भूल जाती हूँ। थैंक यू। मैंने पहले रखा हुआ था। पहले पापा ने कहा था तो वो भी भूल गई, फिर तो हम भूल जाते हैं, तो बच्चे सो जाते हैं। तो इसलिए हम ना गीतों के बाद अगर मैं भूल जाऊं तो कोई ना कोई याद कराते हैं। तो हम गीतों के बाद जिसने भी अपने पास रोटी या पानी रखा हुआ है तो वो ईमान से उसको खाए और पानी को पिए, तो खुदावंद आपको हर एरिया में शिफा जो है वो देता है। ठीक है, तो मैं छोटी सी दुआ करती हूँ, तो हम सब आप मिल के इस रोटी को लें और पानी को पिए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो बाप। खुदावंद हम तेरी हुजूरी में आए हैं, खुदावंद तेरे कदमों में आए हैं। खुदावंद अपने आप को खुदावंद तेरे कदमों में उंडेल देते हैं। खुदावंद खुदा
हमें पाक कर, साफ कर, हर किस्म की गंदगी को, नापाकी को, खुदावंद जो कुछ भी हमारे खिलाफ बोला गया, लिखा गया, पढ़ा गया, खुदावंद उसको यीशु तेरे खून से धो के पाक और साफ कर दे। हर किस्म का कहीं हमने कुछ बोला है, कुछ हमारे दिल में किसी के लिए कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, कोई नफरत है, खुदा यीशु के नाम से उसको अपने दिलों से निकालते हैं और अपने दिलों को पाक और साफ करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा अपने बदन को सर से लेके पांव के तलवे तक, खुदा यीशु मैं अपने आप को, पूरे ग्रुप को यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। हर किस्म की गंदगी, नापाकी हमारे बदनों से, हमारे घरों से यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु तेरे खून से जाती रहे। खुदावंद अब जब हम इस तेरे खून को लेते हैं, तेरे बदन को लेते हैं अपने बदनों में, तो जहां जहां से ये खुदावंद तेरा लहू जो पानी खुदावंद यीशु तेरे लहू में तब्दील हो गया है, खुदावंद जहां जहां से भी ये गुजरे, हमारे बदन, हमारे जिस्म के अज़ा पाक और साफ होते जाएं। हर किस्म की लानतें, हर किस्म की गंदगी, नापाकी, बीमारियां खुदा यीशु के नाम से वो खत्म हो जाएं। यीशु के नाम से कहीं उनका नामो निशान न रहे हमारे बदनों के अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर। जब हम इस रोटी को लेते हैं जो खुदा तेरे बदन को पेश करती है, जो हमारी शिफा को पेश करती है, खुदा इस जो तूने हमारी खातिर इस बदन को तोड़ा, खुदावन हम जब इस बदन को लेते हैं तो खुदावन तेरी शिफा, तेरी खुदावन जी उठने वाली कुदरत जो है हमारे बदनों के अंदर दौड़ जाए यीशु के नाम से। खुदा कहीं पे भी कोई भी मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, खुदावन तेरी उसी कुदरत से, तेरी उसी जी उठने वाली कुदरत को आज खुदावन एक एक बदन के अंदर मांगती हूँ यीशु के नाम से। तेरा जलाली काम हमारे बदनों के अंदर हो खुदावन, हम पाक और साफ होते रह जाएं खुदावन यीशु के नाम से, ताकि जब तू आए खुदावन यीशु मसीह तो हम तैयार हों, हम उस दुल्हन की मानिद हो, उस पाक दामन कमवारी की माने तैयार हों जिसकी मशलों में तेल था खुदा, और जो खुदा तेरी आमद के लिए तैयार थी, ताकि हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाली हो। बादलों पे जब तू आए तो हम तेरे साथ जाने वाले हों यीशु के नाम से। अब आप खुदा हर किस्म की जो खुदावंद प्लीज ने हमारे शागिर्द कहीं पे भी हमारी बीमारी की सूरत में या किसी परेशानी की सूरत में खुदावंद तीर चलाए हूँ, आज यीशु के नाम से सारे तीरों को कुंद कर देती हूँ, फेल कर देती हूँ उसके सारे मंसूबों को यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज तेरे कलाम से खुदा यीशु के नाम से हमारे सारे जुए खुलते जाएं खुदा, हमारे सारे बंधन खुलते जाएं खुदा, सारी वो जंजीरें टूटती जाएं, सारे वो डोरियां जो ऐसी बदरूहों की हैं जो हमारे बदनों के साथ, हमारी रूह बदन जान के साथ जुड़ गई हूँ, आज उन सारे बंधनों को तोड़ देती हूँ यीशु के नाम से। आज खुदा आज खुदा हमारे ग्रुप में आजादी है, बहाली है यीशु के नाम से। कहीं पे भी खुदा इब्लीस ने हमें कैद किया हुआ है, हमें जकड़ा हुआ है खुदा यीशु के नाम से, आज वो सारे खुदा बंधनों से रिहाई आ जाए यीशु के नाम से, खुदा खत्म हो जाए खुदा यीशु के नाम से। खुदा उनका कोई असर हमारी जिंदगियों में बाकी ना रहे खुदा, और उसकी सारे जोर को, उसकी सारी कुदरत को शैतान की हम पांव तले कुचलते हैं उसके सर को यीशु के नाम से। खुदा कहीं पे भी बीमारी की सूरत में, माली परेशानी की, फाइनेंस की सूरत में, बीमारी की सूरत में, खुदा लड़ाई झगड़े की सूरत में यीशु के नाम से उसके सारे तीरों को कुंद कर देते हैं, उसकी सारी चालों को, उसके सारे मंसूबों को फेल कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं यीशु के नाम से। खुदा आज हम जब इस मीटिंग से उठे तो तेरी आजादी को, बहाली को, शिफा को, खुशहाली को खुदा लेके उठे, और खुदा तेरे सारे जो बरकतें खुदा तूने इस कलाम में खुदा हमारे साथ वादे किए हैं, उन सारी बरकतों को यीशु के नाम से आज क्लेम करते हैं कि वो हमारी जिंदगियों में वो पूरी हो। एक एक जरा सी खुदा जो तूने हमारे साथ वादे किए हैं वो सब मेरे लिए हैं, वो सब हमारे ग्रुप के लिए हैं, एक एक के लिए हैं। वो सारी बरकतों के दरवाजे यीशु के नाम से खुलते जाएं, आसमान के दरीचे खुल के खुदा रूहानी बरकतें नाज़िल हो आसमान से खुदा, तेरे तख्त से, सहून से नाज़िल हो यीशु के नाम से खुदा। इस दुआ को खुदा पूरे ईमान और भरोसे और तवक्कुल से हम मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।
हालेलुया। जी, पूरे ईमान से इस पानी को पिएँ, जो कि अब यीशु के लहू में तब्दील हो गया, और इस रोटी को खाएँ। खुदावंद आपको शिफ़ा देगा, और जहाँ कहीं भी आपके कहीं भी कोई परेशानी है, तो ज़रूर उसके ऊपर यीशु के लहू को लगाएँ। प्रेज़ गॉड। जी, दीदी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मामी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अभी छोटी सी टेस्टमनी शेयर करनी थी। अभी जब मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे ब्लड प्रेशर की प्रेयर करें, तो ये मैं सुबह से बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब शाम में मैंने प्रेयर जो करनी है, तो मुझे खुदावंद ने 2-3 और चीजों के लिए बोझ दिया दुआ करने के लिए। तो उसके बाद अचानक से जो है ना, मेरा बीपी हाई होना शुरू हो गया। तो अभी जब प्रेयर करते, मैंने प्रेयर करने से पहले जब चेक किया था, तो मेरा ब्लड प्रेशर 145 से अबव जा रहा था, और नीचे वाला जो है वो 100 हुआ था। फिर जब आप लोगों ने सबने प्रेयर की है, हम सबने, और मैंने इसको रिसीव किया, उसके बाद जो है मैंने थोड़ी देर पहले ही चेक किया, मेरी ना थोड़ी सर की दर्द ना कम होने लग गई थी। मैंने उसको चेक किया, तो चेक करते वक्त मैंने अभी जब देखा, तो 145 से नीचे आकर 135 हो गया है, और खुदावंद का शुक्र है कि नॉर्मल की तरफ आ रहा है। और नीचे हालेलुया। जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, वो भी खुदावंद की फजल से वो भी कम होने लग गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके ईमान को और ज़्यादा बढ़ाए, और ज़्यादा आप खुदावंद की हर एरिये में शिफ़ा को खुदावंद आपको शिफ़ा दे, और खुदावंद के ऊपर आपका ईमान जो है इसी तरह बढ़ता जाए। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि ईमान के वसीले से ही हम अपनी शिफ़ा को रिसीव करते हैं। जिनके अंदर ईमान नहीं है, अ, वो शिफ़ा को अपनी रिसीव नहीं कर सकते। किसी भी एरिया में कोई आपको चाहिए, तो जब तक आपका ईमान नहीं है, वो आपको नहीं मिल सकती। तो इसलिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आपके ईमान को और ज़्यादा बढ़ाया। गॉड ब्लेस यू। जी, हम सतशना 28 बाब जो है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा ईमान है हम आज इसको ख़त्म करेंगे। तो लानतों के बारे में सीख रहे हैं, और बरकतों के बारे में सीख रहे हैं। तो हमने मेरे ख्याल ये तीसरा या चौथा है शायद, है ना, कि हम इस पे बात कर रहे हैं। तो हमने सीखा जब तक हम लानतों को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक जो बरकतें हैं खुदा उनकी, वो हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेंगे, है ना? तो इसलिए पहले गंदगी को साफ करें, जो किसी भी तरह लानतें बीमारी की सूरत में या किसी भी ऐसी वजह से हमारी ज़िंदगी में आ गई हैं, तो पहले हम रोज़-रोज़ पहले थोड़ा-थोड़ा सीख रहे हैं कि जिसको हम कई दफ़ा वो लानत समझते ही नहीं हैं, या वो हमारे ज़हन में भी नहीं होता कि ये तो हम इस तरह का काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे लानत है छुपी हुई, है ना? तो जिस तरह हमने सीखा था कि अगर कोई क्योंकि मेरे दिल को ये बड़ी टच की कि हम खुशी से इबादत में भी शरीक नहीं होते, तो लानत हमारी ज़िंदगी में आ जाती है। ये हमने उसमें सृष्टा की किताब में पढ़ा है ना, ये 28 चैप्टर में। तो हमने तो आप खुद सोचें कि किस किस ज़रिए से किस तरह ये लानतें जो है हमारी ज़िंदगी में काम कर रही है ना? तो इसलिए रोज़-रोज़ हमें इनको कैंसल करना, इनको अपनी ज़िंदगी से, अपने बदन से, अपने घरों से, इनके रिश्ते नातों को तोड़ना देखेंगे कितना ज़रूरी है। कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि हम जो है वो इबादत में जाते हैं या चर्च जाते हैं, या फ़र्ज़ करें इस मीटिंग में आते हैं, या बाइबल पढ़ने के लिए, गीत गाने के लिए हमें कहा जाए, या कुछ भी करने के लिए कहा जाए खुदावंद के लिए, तो हम दिल से नहीं करते। तो खुदावंद ने कहा, हमने ये पढ़ा कि अगर तुम दिल से नहीं करते मेरी इबादत, तो क्या होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या आ जाएगा, मोहताजी आ जाएगी, और नंगापन आ जाएगा हमारी ज़िंदगियों में। तो इसलिए कहीं मैं कहूँगी कि इस तरह भी तो आपकी ज़िंदगी में, या मैं कहूँगी मेरी ज़िंदगी में ऐसी लानत तो नहीं ठहरी हुई, जिसको हम किसी, मैं कहूँगी, गिनती में भी नहीं लेके आते। तो इसलिए
कह लें कि अपनी अपनी, जैसा हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं कि हाँ, लिखा हुआ है कि ये इस्तिश्ना की किताब 28 चैप्टर उसकी 47 जो आए थे उसमें लिखा हो कि अगर तुम्हें जो मैंने तुझे दिया हुआ खुश फरावानी से दिया हुआ, लेकिन तुम मेरी इबादत जो है वो नहीं करते, दिल से नहीं करते, है ना? तो क्या होगा? इसलिए कि भूखा और प्यासा और नंगापन और मोहताजी जो है वो हमारी ज़िंदगी में आ जाएगी, और खुदा ने कहा कि दुश्मनों की तू खिदमत करेगा, ठीक है? तो इसलिए ये लानतों का या बरकतों का हमें सीखना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है? तो इसलिए मैं कह लें मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही हूँ कि आज मेरा ये चौथा, हाँ, जैसे कह लें कि बार है कि हम एक चैप्टर के 4 दिन हो गए उस पे हम बात कर रहे हैं, है ना? तो उस दिन हमने थोड़ा-थोड़ा सीखा था कि अगर हम कुछ अपने बारे में खुद भी बोल देते हैं, तो हमारे ऐसी लानतें जो है हमारी ज़िंदगी में ठहर जाती हैं, है ना? जिनको अपने आप से कैंसल करना वो ज़रूरी है ना? तो जिस तरह हमने सीखा कि रुबैका ने क्या किया, अपने जो उसका बेटा था याकूब, तो जब बाप से बरकत लेने के लिए गया, तो क्योंकि आप सबको शायद स्टोरी का पता होगा ना, तो क्योंकि बड़े की बरकत थी लेकिन याकूब ने उसको जैसे कह लें धोखे से लिया, तो उसने बेटे ने कहा याकूब ने कि कहीं मुझे बरकत की बजाय लानत ना मिल जाए माँ। तो माँ ने कहा कि तेरी जो सारी लानत है वो मेरे ऊपर आ जाए, है ना? तो हमने सीखा कि इस तरह हम बहुत अपनी अपनी जिंदगी में भी ऐसे माएँ जो हैं या कोई भी जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम अपने जैसे कह लें जज़्बाती हो के उस मोहब्बत की में बह के हम कहते हैं कि तेरी मुसीबत जो है मेरे ऊपर आ जाए, तेरी बीमारी मेरे ऊपर आ जाए, या तेरे गुनाह या तेरी लानतें मेरे ऊपर आ जाए, है ना? तो उस दिन हमने इसके लिए दुआ की और खुदा ने मेरा ईमान है कि हमें आज़ाद किया है, बहाल किया है ना? तो इस तरह से भी लानतें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो आज हम थोड़ा-सा और सीखेंगे कि और कौन-कौन से ऐसे जो यानी उसमें नहीं है, जो 28 चैप्टर हमने पढ़ा, लेकिन वो भी उनके वजह से भी लानतें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। जैसे हमने सीखा कि बाप अगर अपने मुँह से बच्चों के लिए कुछ बोल देता है नेगेटिव, तो वो बच्चों के ऊपर ठहर जाता है, वो लानत जो है ठहर जाती है। इसलिए बाप जो है जितने बाप सुन रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि अपने मुँह से कभी भी बच्चों के लिए या अपनी बीवी के लिए भी, है ना? कोई ऐसी बात जो है वो ना निकालें, जो नेगेटिव हो, जो उसकी ज़िंदगी पे ठहर जाए। बहुत आदत होती है बच्चों की ये कि ये बड़ा सॉरी बाप की कि ये बड़ा ढीठ है, ये बड़ा सुस्त है, या इस तरह की हम कई दफ़ा अनजाने में ऐसे बातें जो हैं हमारे मुँह से निकल जाती हैं, बाप जो है निकाल देता है। या फिर कई दफ़ा गुस्से में होता है तो वो कहता है कि जा तू तो कभी इस एरिये में या इस जॉब में या इस पढ़ाई में कह लें कि कामयाब नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो लानत जो है बच्चों के ऊपर ठहर गई है ना? और फिर जो दूसरा एरिया है, जो उस्ताद हैं, जो हमारे टीचर होते हैं, उनके पास भी ये इख्तियार है कि वो कुछ बोल दें बच्चों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, है ना? तो तब भी जो है जैसे कह लें कि लानत जो है वो ठहर जाती है। ये थोड़ा-सा जैसे कह लें एक मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, तो उसकी टीचर हालाँकि ऐसी नहीं है, सुरैया को पता है, वो खुदा उनका शुक्र है कि मतलब हर काम में, हर एरिये में, पढ़ाई में खुदा उनका शुक्र है कि बच्चे जो हैं बड़े एक्टिव हैं या तेज़ हैं, या मैं कह लूँ कि वो खुदा उनका हाथ उनके ऊपर है। तो पढ़ाई में भी बड़े अच्छे हैं, जावेद की तरह, मेरी तरह नहीं। तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसकी टीचर पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आई, वो हमेशा उसके बारे में बोला करती थी। जब भी मैंने कभी उससे जब छोटी थी बच्चियाँ तो जाना मिलने के लिए टीचर से, है ना? तो उसने कहना, ओह! ये जी तुम्हारी बेटी तो सुस्ती का पहाड़ है, ये तो मतलब कोई काम ध्यान से नहीं करती या इस तरह। तो मैंने सोचना कि ऐसा तो नहीं है वैसे, लेकिन तब इतनी जैसे कह लें एक ऐसी समझ नहीं थी, या जैसे कह लें इस तरफ खुदा ने
तो मैंने उसकी बातों को कैंसिल नहीं किया। और आप यकीन जाने उसके बाद ये बेटी जो है पढ़ाई में तो चले खुदा उनका शुक्र है कि बहुत अच्छी है लेकिन ना बाकी के एरिया में ये सुस्त सुस्त, इसने देर से उठना, अपने जो काम है वो ध्यान से नहीं करने, और आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि ये इसकी जो जो उसकी टीचर बोलती थी ना वो उसके ऊपर ठहरता गया। लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि जब से मैंने इस जैसे कह लें चर्च में जाना शुरू किया, तो खुदा ने एक जैसे कह लें लानतों के बारे या जो कुछ भी हमारे बारे में नेगेटिव बोला गया, लिखा गया या पढ़ा गया, तो मैं वो रोज ही जितनी बार भी मैं दुआ करूं, मैं उन चीजों को कैंसिल करती हूँ कि हमारे बारे में किसी ने बोला है या हमने किसी के बारे में कोई नेगेटिव बोला है या सोचा है, तो मैं उसको कैंसिल करती हूँ। तो खुदा उनका शुक्र है कि वो कामयाब है हर एरिया में या सब। लेकिन वो टीचर जो थी वो ऐसा बोला करती थी, तो उनके पास भी इख्तियार है, खुदावन ने जो हमारे उस्ताद हैं उनको भी ये दिया हुआ है। तो इसलिए जो टीचर हैं यहाँ पे कह लो, तो उनसे भी मैं कहूँगी कि जरूर अपने जो स्टूडेंट है बच्चों के बारे में कभी कुछ ऐसा ना बोले, हमेशा उसको उनको बरकत दें, हमेशा आपके मुंह से उनके लिए निकले कि हाँ नहीं तो हर एरिया में कामयाब होगा या होगी, है ना। तो ये क्या है उनके ऊपर ठहर जाएगी। जो मिडल वाला बेटा है, तो यहाँ पे वो उसकी टीचर थी, अ, तो उसके बारे में बहुत अच्छा बोलती थी। मैं यानी वो हिंदू थी, टीचर जो थी, तो मैं जब वो बोल रही होती थी तो मेरा दिल करता था ये मैं रिकॉर्डिंग कर लूं। इतना ज्यादा वो जैसे कह लें अच्छे अल्फाज या बरकत के अल्फाज जो है बेटे के लिए बोलती थी, तो मैं कहती खुदावन देखो कि इसके दिल में कितनी ऐसे जैसे कह लें माँ बाप की तरह मोहब्बत है, प्यार है। तो मैं कहूँगी कि जो भी टीचर हैं उनके लिए भी आज कह लें खुदा उनकी आवाज है कि वो अपने बच्चों की तरह बरकत उनको दिया करें, जो स्टूडेंट है उनके, है ना, क्योंकि उनके पास इख्तियार है, जो कुछ वो बोलते हैं वो बच्चों के ऊपर ठहर जाता है ना। फिर दूसरे नंबर पे ये कह लें कि खामन जो है, जो शौहर है, वो भी अपनी बीवी के लिए कुछ बोलता है तो वो बच्चों के ऊपर ठहर जाता है, इसलिए सॉरी बीवी के ऊपर ठहर जाता है। तो इसके लिए हम हवाला पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा ये भी कहना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर हैं वो भी जो हैं, जो कुछ बोलते हैं अपने पेशेंट के लिए, वो उनके लिए ऊपर ठहर जाता है। आज मैं चाहूँगी कि जब दीदी प्रेयर करे, तो ज़रूर दीदी जो कुछ भी डॉक्टरों ने हम सब के खिलाफ क्या लें बोला हुआ है कि जी आपको, जैसे कल मेहराल पापा कह रही थी कि उसने कहा कि आपकी हिस्ट्री है कि आपको कैंसर होगा, क्योंकि आपकी माँ को था, आपके नाना को था, तो वो आपकी फैमिली में ट्रांसफर होगा। वो वैसे भी हमें पता ही है, लेकिन ना आज हम ऐसी जो जो भी डॉक्टरों ने कि ये जी ये तो लालाज बीमारी है, ये सारी उम्र ही रहेगी, जैसे शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है ना, और ऐसी ऐसी जो बीमारियां हैं, तो डॉक्टरों ने जो हमारे पास कह लें कि रिपोर्ट है या उन्होंने मुंह से कुछ बोला हुआ है, तो आज हम उनको कैंसल करेंगे, क्योंकि क्या है वो ठहर जाता है। जैसे विक्की ने अभी गवाही दी कि डॉक्टर उसको कुछ कह रहा था कि तू आना चेक कराना या ये अभी और तुझे चाहिए, लेकिन इसने दिल से क्या कहा कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी डॉक्टरों ने आपकी बीमारी के बारे में बोला हुआ है कि वो ठीक नहीं हो सकती, अम, उसके लिए एक मैं थोड़ी सी टेस्टमनी भी देती हूँ, अ, अपनी नहीं लेकिन ये कुछ अर्सा ही पहले, शायद पिछले साल मैंने ग्रुप में भी डाली थी कि एक लेडी थी, तो उसको ये सिद्रात का प्रोग्राम है, पापा ने सुना होगा, तो उसमें डॉक्टर ने उसको बोला कि तुझे कैंसर है, तेरे पास पता नहीं, उसने बोला शायद 1 महीना है, जैसे उसने बोला कि 2 महीने है सिर्फ, है ना। तो रोई, खुदावन से दुआ की, और खुदावन ने उसको गाइड किया, मैं थोड़ा शॉर्ट करके करूँ, खुदावन ने उसको गाइड किया कि तू ना होली कम्युनियन जो है, पाक शराकत जो है वो रोज ही लिया कर। और उसने खुदावंद ने उसको कहा, लेकिन उसको इसकी कुछ समझ नहीं लगी, और ना ही कोई ऐसा उसको पता था या ज़रिया था। तो इसी उसमें जैसे कह लें उन्हीं दिनों उसकी जो
दोस्त कह लें, जो पास्टर थी, तो उसका फोन आया और वो अपने उसके घर चली गई। और वो जो पास्टर थी, मुझे सही नहीं याद गया, उसकी बीवी थी पास्टर की, तो वो रोज ही उसको होली कम्युनियन जो है, ये पाक शराकत जो है, वो रोटी और वो जो मैं है उसके बेड के पास रख के चली जाती थी। खुद ड्यूटी पे चले जाना और उसने उसने उसके पास रखना, और उसने उसको कहा कि तू ये रोज लिया कर, खुदावन जो है तुझे शिफा जो है वो दे देगा। और यही कलाम खुदा ने उसके साथ किया हुआ था। और आप यकीन जाने कि उसने डॉक्टर ने उसको महल 2 महीने दिए थे, और वो जो औरत है वो अभी भी कह लें जिंदा है, वो अभी भी बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त है। जो कुछ भी डॉक्टर ने बोला था वो उसको कैंसल करती रही, और वो खुदावंद यीशु मसीह का लहू और वो जो रोटी थी जो खुदावंद ने उसको खुद कहा था, तो उसने लेना शुरू किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो इसलिए जो डॉक्टरों ने कहा होता है वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि वो पूरा होगा। हमारा खुदावंद जो है वो जिंदा खुदा जो है वो हमें शिफा देने की मुकम्मल शिफा देने की कुदरत रखता है। तो इसलिए जो कुछ डॉक्टरों ने बोला हुआ है आपके खिलाफ, उनको कैंसल करें। और जिस तरह अभी विक्की ने कहा कि नहीं, इसके अंदर से दिल से उठ रहा था कि नहीं, मुझे अब इसकी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो इसलिए आप भी जहाँ कहीं ऐसा खुदा ने ऐसी कोई बीमारी जो है जिसके बारे में उसने कहा हुआ है, बेशक आपके पास रिपोर्टें भी हैं, तो आप उसको कैंसल करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे मुकम्मल जो है वो शिफा जो है तू देने की कुदरत रखता है। जी। और फिर है जो खुदा के खादम है, जो पास्टर हैं, वो भी अपने जो कलीसिया है, तो उनके बारे में कुछ बोलते हैं, वो उनके ऊपर ठहर जाता है। वो कुछ बुरा बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे या कोई लानत देंगे, तो वो अपने जो कलीसिया है उनके ऊपर ठहर जाएगी। तो इसलिए खादम जो है, खुदा के खादम जो हैं, खुदा के जो मसा किए हुए हैं, जो पास्टर हैं, वो भी अ, हम जो हैं कोशिश करें कि अ, जो पास्टर हैं जो कुछ वो बोलते हैं उसको रिसीव करें, जो बरकत जो हमें वो देते हैं, है ना? तो खुदा के खादमों के मुंह से कभी भी कोई ऐसी जो बात है वो नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि क्या है, वो ठहर जाती है। तो अब हम या और भी जो किसी तंजीम के साथ कोई हम चल रहे हैं, तो उनके पास भी इख्तियार है, जिनके साथ कोई अहद बांधा हुआ है। जैसे हमने फ्री मेसन का हमें पता है कि ये तंजीम जो है ये खुदा के खिलाफ काम करती है ना? और फिर जो शैतान के जो लोग हैं, जैसे जो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं, जो चिल्ले चढ़ाते हैं, है ना? तो वो भी क्या है, वो हमारे ऊपर ठहर जाती हैं। उनके जो कुछ वो बोलते हैं, है ना? तो अब हम 1-2 हवाला पढ़ते हैं और साथ ही हम इसके साथ बात करेंगे, है ना? तो पहले हम पढ़ते हैं, हमारे साथ कौन है रीडिंग में? खामंद अगर जो बीवी हाँ के जी खिलाफ, बाजी, मैं रीड करूंगी। ओके जी, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रेज़ द लॉर्ड जी। अंजना आप निकालना अ, पैदाइश की किताब, हाँ जी। अगर उसका 31 बाब और उसकी 32 आयत पढ़ेंगे, जिसमें याकूब ने क्या किया था, अनजाने में ही बेशक बोला था, लेकिन अपनी बीवी के जैसे कह लें खिलाफ बोला था, और वो उसी तरह पूरा हुआ था। पैदाइश की किताब उसका हाँ जी 31 मेरी बाब बाजी। उसकी 32 आयत में पढ़ते हैं। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਲੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਯਾਕੂਬ नहीं जानता ਸੀ कि राखेल ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ चुराया है। हाँ जी, बस आमीन। ठीक है। आगे आप इसी का पैदाइश की 35 चैप्टर जो है उसकी 17 आयत हाँ जी। पढ़ना, जिसमें उसने जो हाँ अभी जी। ये कुछ कहा कि जिसके पास ये जो उसका बुत है वो मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, वो मारा जाएगा या मर जाएगा। जी। हाँ जी। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਨੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਨ ਉਨੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਰੱਖਿਆ।
आमीन। आमीन। हाँ अगो भी जी, पढ़ी। नहीं बस ठीक है। तो देखे कि उसके हस्बैंड ने, उसके खामंद ने, उसके शौहर ने अनजाने में ही बोल दिया था कि जिसके पास ये बुत मिलेगा, वो वाला हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमें पता है कि बुत जो था वो राखल के पास से मिला था, वो रिचल के पास से मिला था। तो इसलिए क्या जो उसके हस्बैंड ने बोला था, वो जो लानत थी या वो जो उसके मुंह से लफ्ज निकले थे, वो उसी तरह पूरी है। वो रास्ते में ही जो राखल थी, जब उसका छोटा वाला बेटा जो है बनियामीन पैदा हुआ, तो वो उसी उसमें मर गई थी। तो इसलिए खुदा जो खामंद है, उसके भी खुदा ने एक इख्तियार दिया हुआ है कि जो कुछ वो अपनी बीवी के लिए कह देता है, वो पूरा हो जाता है। बुरा बोलेगा तो बुरा हो जाएगा, अच्छा बोलेगा तो अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं शौहर से कहूंगी कि आप अच्छा ही बोला करें, ताकि आपकी बीवी जो है वो जैसा आप चाहते हैं वैसी ही बनती जाए। प्रेज़ गॉड। फिर हम देखते हैं और हवाला पढ़ते हैं। इस्तिश्ना की किताब, उसका 7 चैप्टर और उसकी 26 आयत पढ़ते हैं, जिसमें इस तरह भी जो लानत है हमारे जिंदगियों में आ जाती है। इस्तिश्ना की किताब, उसका 7 बाब और उसकी 26 आयत। बाजी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈप्टर पढ़ते हैं ना वो है ना व्यवस्था साहब। हाँ जी, हाँ तो जी। ठीक। 5वीं जो ਹਾਂਜੀ तोरा की किताब है। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਘਿਣ ਹੀ ਘਿਣ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ हराम ਦੀ चीज है। आमीन। हाँ जी, ये देखें कि इससे भी लानत जो है हमारे घरों में आ जाती है, किसी चीज की वजह से, है ना? कोई चीज ऐसी हम ले आए जो लानती है। जैसे इसके ऊपर ही अगर चैप्टर के पढ़ें तो लिखा है कि जो मूर्तियों के साथ जो सोना लगा है या चांदी लगी हुई है, तो खुदावंद ने कहा था उसका लालच ना करना। या ऐसी कोई भी चीज जो कह लें इस्तेमाल होती है दूसरे खुदाओं को ऊंचा करने के लिए, या उनकी जो मूरत है कोई, या कोई ऐसी तस्वीर बनी हुई है, या ज़हर, या कोई ऐसी जो कह लें नेगेटिव यूज़ होता है कामों के लिए, या ऐसे हथियार जो हैं, तो वो हमारे घरों में नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्या है उससे लानत जो है हमारी ज़िंदगी में या हमारे घरों में आ जाती है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हमने जब घर की सफाई के लिए सीखा था रूहानी तौर पे, तो हमने सीखा था कि ऐसी चीज़ों को जो खुदावंद के नाम को जलाल नहीं दे रही, कोई ऐसी पिक्चर्स बनी हुई है दूसरे खुदाओं की, या कुछ ऐसे निशान हैं, है ना? हाथ के या खोपड़ी या कुछ, है ना? तो उसको भी घरों से निकालना है। उसके ज़रिए भी क्या होता है, लानतें हमारी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देती हैं, है ना? फिर लानत का हमें वो हवाला नहीं हम पढ़ते, क्योंकि महल आप सबको ही पता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने जो कि खुदा कह लें या खुदावंद का खादम उस सूरत में था ज़मीन पे, तो खुदावंद ने उस अंजीर के पेड़ को लानत की थी और वो उसी वक़्त कह लें सूख गया था, है ना? तो इस तरह खुदा के जो खादम हैं वो भी जब लानत करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो वो ठहर जाता है। उस चीज़ के ऊपर कह लें या किसी इंसान के बारे में बोलें, तो वो उसके ऊपर भी ठहर जाता है ना? फिर आप सबको पता होगा, लेकिन हम हवाला जो है वो पढ़ते हैं। नुमान कोढ़ी के बारे में आपको पता होगा। जना आप निकालना जो सलातीन है, दूसरा सलातीन, ये मैं आपको बताऊँ कौन-सी किसके बाद आता है? बाजी सैमुएल के राजा बाद। या सैमुअल। हाँ, सैमुएल के बाद जो बुक आती है सलातीन, दूसरा हाँ जी। सलातीन। हाँ हाँ जी। जी, उसका 5 बाब, उसकी 27 आयत। दूसरा सलातीन, उसका 5 हाँ बाब, जी। उसकी 27 आयत, हाँ जी। जिसमें ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਾਨ ਦਾ ਕੋਟ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाँ जी, क्या हुआ, खुदा के खादम ने अ, उसको लानत की थी। तो जो कोढ़ था, जो जो उसका नाम था हज्जाजी, मेरा ख्याल उसका नाम था, है ना? जो उसका नौकर था, उसके पूरे बदन पे हो गया था। बल्कि उसके खुदा का जो खादम था उसने कहा कि तेरी पूरी नस्ल को होगा वो कोढ़ जो है।
तो इसलिए वो जो लानत थी ना सिर्फ उसके ऊपर ठहरी जब खुदा के खादम ने उसको लानत की, उसकी लालच की वजह से कह लें, है ना, तो वो जो नुमान कोड़ी का कोड़ था वो उस पे आ गया, है ना। तो इसलिए खुदा के खादम भी जो कुछ कहते हैं वो भी पूरा होता है। तो इसलिए खुदावंद ने खुदा के जो खादम हैं उनको भी जो कह लें कि इख्तियार जो है वो दिया हुआ है। तो इसलिए हम जरूर कोशिश करें कि खुदा के खादमों से हमेशा जाके बरकत लें। एक और हम हवाला पढ़ेंगे यशवा की किताब, उसका 6 बाब, यशवा की किताब उसका 6 बाब और उसकी 26 आयत, जिसमें हम देखते हैं कि यशवा ने जब यरू की दीवारें जो थी या उसको गिरा दिया था खुदावंद ने। जी अंजना पढ़ना, यशवा 6 ਬਾਬ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜੋ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਯਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾਵੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਲਾਵੇਗਾ। जी ये देखें, जैसा बिल्कुल मैं कहूंगी लफ्ज ब लफ्ज जैसा यशवा ने कहा था कि जो कोई भी दोबारा से इस उसको यरू को जो शहर था उसको तामीर करेगा तो ये वाली लानत जो है उसके ऊपर ठहर जाएगी कि उसका बड़ा बेटा और उसका छोटा बेटा जो है, पलोठा और छोटा बेटा क्या होगा, वो मर जाएंगे जब यानी तामीर शुरू करेगा, जब बुनियाद रखेगा और जब फाटक लगाएगा, जब बड़ा यानी बुनियाद जब रखेगा तो पलोठा मर जाएगा और जब वो फाटक लगवाएगा तो छोटा बेटा मर जाएगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह जैसे कह लें ये जो उसकी लानत थी वो पूरी हुई जैसा खुदा के खादम ने कहा था। तो इसी जो सलातीन है, पहला सलातीन उसका 16 बाब और उसकी 34 जो वर्स है अंजना वो आप पढ़ना। पहला सलातीन जो भी आपने पढ़ा ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲਾ राजियां दी है, राजियां दी ਹਾਂਜੀ हाँ जी, ये पहला सलातीन उसका 16 बाब और उसकी 34 वर्स जो है वो पढ़ना, जिसमें ये जो खुदा के खादम ने कहा था वो बिल्कुल वैसा ही का वैसा ही पूरा हुआ। 34 पहला सलातीन उसका ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤੈਲੀ ਨੇ ਯੂਰੋ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਰਾਮ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸਗੂਬ ਨਾਲ ਉਸਦੇ फाटक खड़े ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ੂਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਠੇ ਸੀ। हाँ जी, ये देखें कि इतने सालों के बाद जब इस इस्राएली कौम जो थी वो जो यशवा ने कहा था खुदा के खादम ने, ये लानत जो थी एक किस्म की दी थी कि यरू का जो शहर है उसको दोबारा जो बात करे उसके ऊपर ये वाली लानत आ जाए, वो भूल गए हुए थे। लेकिन जब इस बादशाह ने इस वो भूले हुए थे तो बुनियाद डाली तो उसका पलोठा जो है वो मर गया, है ना। और जब फाटक जो थे, दरवाजे जो थे जब लगाए तो उसका छोटा बेटा जो था वो मर गया। तो इसलिए जो खुदा के खादम के मुंह से निकले थे वो वैसे के वैसे ही पूरे हुए, वो जो लानत जो थी वो पूरी हुई। तो इसलिए खुदा के खादमों के पास इख्तियार है, जो टीचर हैं उसके पास इख्तियार है, डॉक्टर जो हैं उसके पास इख्तियार है, जो हस्बैंड है उसके पास इख्तियार है, जो बाप है, जो किसी तंजीम का जैसे कह लें कोई रहनुमा है उसके पास इख्तियार है, और जो शैतान के कह लें कि चेले हैं उनके पास भी इख्तियार है कि वो जो कुछ आपको पता है ये जो तवीज़ धागा या जो कुछ वो पढ़ पुढ़ के देते हैं फूके मार मुर के, तो इसीलिए वो असर जो है वो हो जाता है। तो उनके पास भी इख्तियार है। तो इसलिए ये जो है इनको हमने रोज रोज कैंसिल करना है ना। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, पहला सैमुअल और उसका 17 बाब और उसकी 43 आयत, जिसमें हमें पता चलता है कि जो दाऊद था जब
जंग करने के लिए वो फिलिस्ती जो था जाति जूलियत, तो वो जाति जूलियत क्या बोल रहा था, है ना जी अंजना मिला? पहला सामुएल उसका 17 बाब, हाँ जी 17 बाब और उसकी 43 जो आयत है, जिसमें जो वो जाति जूलियत जो था, जो फिलिस्ती था, जो कह लें शैतान का वो बंदा था, तो वो खुदा के बंदे के बारे में बोल रहा था, यानी दाऊद के बारे में बोल रहा था, खुदा के बारे में बोल रहा था। जी पढ़ना। सो फलिस्ती ने दाऊद ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ दाऊद ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। हाँ ਤਦ जी ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ दाऊद ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਾंस ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਾਂ। हाँ, तो उसने क्या किया था, दाऊद को लानत की थी। 43 आयत में हम पढ़ते हैं ना, और उसने खुदा को भी लड़का अपने, उसने देवताओं का नाम लेके, तो एक जैसे कह लें कि दाऊद को लानत की थी। तो लेकिन आगे अभी जनाब पढ़ना कि ये सारी जो लानतें हैं, या सारे ये जो हमने डॉक्टर के, बाप के, उस्ताद के, खावन के, या खुदा के खादम, या कोई ऐसी तंजीम का जो ऐसा कोई रहनुमा है, उसने भी हमारे खिलाफ कुछ बोल दिया, या जो शैतान के चेले हैं वो भी हमारे खिलाफ कुछ बोल देते हैं, तो हमने उनको कैंसिल करना है। और ये जो दाऊद ने कहा था आगे अब अंजना ये पढ़ना कि दाऊद ने जो कहा था, जो दाऊद ने किया था, हमने भी वही सब कुछ करना है, कि उनको सबको कैंसिल करना है और खुदावंद का नाम लेके, खुदावंद के जोर को लेके, ताकत को लेके। हाँ जी अंजना पढ़ना। नेक्स्ट वर्स तो अच्छी है ना? हाँ जी, जहाँ वो दाऊद ने सा- कहा कि तू तो वो उसका नाम लेके आया, लेकिन मैं रब्बुल फाज के नाम से क्या करता हूँ, लश्करों के नाम। हाँ जी पढ़ो। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੌਦ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਤੇ, ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ हालेलुया, ਤੂੰ praise God, ਲੱਜੈਵਨ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ हालेलुया, ਤੇਥੋਂ praise ਵੱਖਰਾ God, ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਪੌਣ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣੇ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ हालेलुया, ਕਰਕੇ praise God, praise the Lord, ਇਸ ਕਰਕੇ praise ਕਟਕ God। ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜਨਾ। पढ़ हाँ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਟਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਫਲਿਸਤੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲ ਦੀ ਵੱਲ ਫਲਿਸਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨੱਠਾ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਥਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੋਪੀਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਪੱਥਰ ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਾਰਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਪੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਦੋ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਜਾ ਫਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਵਾਨ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਦੂਨ ਤੋੜੀ, ਅਕਰੌਨ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੋੜੀ, ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਪਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਗਏ ਸੋ ਸਾਅਰੇਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗਥ ਅਕਰੋਨ ਤੋੜੀ ਡਿੱਗਦੇ ਗਏ। ਤਦ ਇਸਰਾਇਲੀ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਉਸ ਫਲਿਸਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ बस ठीक है, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ थैंक यू। ਨੂੰ हाँ ਆਣ जी ਕੇ ਆਪਣੇ थैंक यू ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਆਮੀਨ। देखेंगे जो दाऊद ने किया है, यही आज मैंने और आपने करना है। क्या किया उसने कि रब्बुल फाज का नाम लेके गया, है ना, लश्करों के खुदावंद का नाम लेके उसने क्या किया, उसकी जो तलवार थी, उसके जो उसने कहा कि तेरा आज ही ये गोश्त जो है तेरे परिंदे जो जंगली दरिंदे जो हैं वो खाएंगे। और कहने के वैसा ही, और उसने उसकी तलवार को, उसकी बर्छी को क्या कर दिया, कुंद कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया उसके सर को। ये जो जाति जूलियत था, ये जो फिलिस्ती था, ये जो
कह लें उसके खिलाफ उठा, और यही दुश्मन की फौजें जो हैं या दुश्मन के जो ये करिंदे जो हैं वो हमारे खिलाफ उठते हैं हर सूरत में, बीमारी की, लाचारी की सूरत में, और हर किस्म की जो मुसीबतें आती हैं हमारी जिंदगी में, इस सूरत में ये दुश्मन के जो फौजों के क्या लें करिंदे हैं जो वो उठते हैं। लेकिन ये देखें दाऊद ने जो किया, आज वो मैंने और आपने करना है। और उसको जैसे खुदा ने फतह बख्शी थी, वो एक ही पत्थर से वो जो जाति जूलियत जो था वो गिर गया था और मर गया था, एक ही पत्थर से। तो हमारे पास भी आज वो खुदा यीशु मसीह का नाम है, उसकी उसका जो कुदरत है वो हमारे पास है, मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास है हम। तो इसलिए डरे ना, घबराए ना, कुछ भी आ गया है, किसी ने लानत कर दिया, जो मर्जी किसी ने कर दिया, जितना मर्जी हमारे खिलाफ किसी ने बोल दिया है, डरे ना। आज हम दिलेरी के साथ, जिस तरह दाऊद ने वो छोटा बच्चा था, हम भी, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, हम दाऊद की तरह हैं, हमारे अंदर कोई जोर नहीं है, हमें शायद लड़ना भी नहीं आता है ना, जिस तरह दाऊद को जंग करनी नहीं आती थी, वो जंगजू नहीं था, मतलब जैसे जिस्मानी तौर पे, लेकिन खुदावन के जोर से, खुदावन की कुदरत से, उसके नाम से, जैसे उसने क्या कहा, रब्बुल फाज के नाम से आता हूँ, उसी तरह मैंने और आज आपने इस जाति जूलियत को, इस दुश्मन के जो भी हमारे खिलाफ जो कुछ बोला गया है, लिखा गया है, पढ़ा गया है, किसी ने भी किया है, ठीक है, वो उसने बोल दिया है, उसके पास इख्तियार था, खुदावन ने उसको दिया था, है ना। लेकिन हमारे खुदावन से बड़ा कोई नहीं है, हमारे खुदावन से ज्यादा जोर आवर कोई नहीं है। उसके नाम से आज इसके सारे जो कुछ भी हमारे खिलाफ लानते हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में काम कर रही हैं, यीशु के नाम से आज वो पत्थर जो है अपने अपने उसमें से निकालें, और उसका वार करें, और उसके सर को जो है वो कुचल दें। वो हमारा जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस तरह विकी ने कहा कि उसके दिल से जो उठ रहा था कि आज मुझे मुकम्मल जो है वो शिफा जो है वो मिल जानी है, और उसको मिल गई। हालेलुया। बिल्कुल इसी तरह आप अपने पूरे जैसे कह ले ईमान से, भरोसे से, तवक्कल से खुदाउन से कहें कि खुदाउन मुझे मेरा ईमान तेरे ऊपर है। मेरे बारे में अगर किसी ने कुछ भी कह दिया, डॉक्टरों ने कह दिया है कुछ, कोई बात नहीं, बाप ने कह दिया, माँ ने कह दिया, या खामन ने, या किसी ने भी, ये जो शैतान के चेले हैं, जैसे हम कहते हैं कि उन्हें जी मेरे तो कुछ काट देता, मेरे तो कुछ पाड़ देता, मेरे तो फूक मार देती कुछ भी जादू टोना कुछ भी किया हुआ है जो लानते हैं, उसको खुदावन, मेरा खुदा और आपका खुदा खत्म करने की, उसको हमारी जिंदगियों से बर्बाद करने की पूरी कुदरत रखता है, पूरी ताकत रखता है। तो इसलिए आज किसी ने भी हमारे खिलाफ कुछ बोला है, आज यीशु के नाम से हमारे साथ दीदी हैं, वो हमारी तरफ से हो के जिस तरह कह लेंगे, जो दाऊद था उसने पूरी फलिस्ती कौम, सॉरी, इसराइली कौम की तरफ से होके जंग की थी। तो हमारे भी दरमियान से जो दुआ कर रहा होता है ना, आप समझे वो इस तरह, वो दाऊद की तरह जंग कर रहा होता है, तो पीछे हमारा जो दुआओं का जोर है वो होना चाहिए, क्योंकि उसकी फतह से हम सबकी फतह जो है साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह दाऊद जब फतह उसने पाई थी, तो पूरी कौम ने, इसराइली कौम ने फतह पाई थी। तो हमारे पूरे ग्रुप के को जब ये हमारे जो वॉरियर हैं, जो हमारी तरफ से होके प्रेयर करते हैं, तो जरूर उनका साथ दिया करें पीछे से, उनके लिए जैसे करें दुआएं किया करें, उनके लिए यानी पीछे से आमीन या हालेलुया ये जरूर कहा करें, क्योंकि क्या हो रहा है, वो हमारी तरफ से लड़ रहा है, जैसे दाऊद जो था पूरी कौम की तरफ से लड़ रहा है और उसको हराया था फिलिस्ती को। तो इसी तरह जब हमारे जो प्रेयर वॉरियर हैं, जो भी दुआ कर रहा हो, सुरैया है, सोनिया है, वफा है, अंजना है, और दीदी हैं, या कोई भी और जो भी दुआ कर रहा हो, तो आप पीछे जरूर पूरा जोर लगाए, क्योंकि ये रूहानी तौर पे बिल्कुल ऐसे जैसे ये जंग लड़ रहा है, बिल्कुल रूहानी तौर पे इस तरह हो रहा होता है, आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये ऊपर जैसे कह लें कि जो रूहानी है, स्पिरिचुअली जो वार है उस टाइम चल रही होती है। इसीलिए जो कह लें विजन जो है नजर आ रहे हैं, वो रूहानी तौर पे जो कुछ हो रहा होता है ना, वो खुदा हमें दिखाता है। तो इसलिए कभी चुप ना बैठा करें। तो जरूर खुदावंद ने जिस तरह इस दाऊद को
फतह जो बख्शी थी, आज जब हमारे लिए जब दीदी दुआ करेगी तो जहाँ कहीं भी हमारे खिलाफ कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, लानतें हमारी ज़िंदगी में ठहरी हुई हैं, माली जो है फाइनेंस प्रॉब्लम जो है वो हमारी ज़िंदगियों से दूर नहीं हट रही, बीमारियाँ नहीं जा रही, लाइलाज बीमारियाँ हमारी ज़िंदगी में है, डिप्रेशन है कहीं, तो खुदावंद आज आपको और मुझे जैसे कह लें उसमें से निकालने के लिए, उस लानतों को दूर करने के लिए, फतह बख्शने के लिए खुदावंद मेरे और आपके साथ है। तो खुदावंद आप सबको बड़ी ही बरकत दे। ये जब ये लानतें खत्म होंगी तो बरकतें जो हैं हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। जो कह लें बहाली, आज़ादी और जो खुदावंद ने सारी बरकतें कहा है वो हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देंगी। तो इसलिए डरे ना, घबराए ना। बताने का आपको सबको ये मकसद था जो लानते हैं कि वो उसको कैंसल करें। हमें पता ही नहीं होता। तो ये एक जैसे कह लें कि मेरा एक मकसद है या खुदावंद जो है मेरे ज़रिए आपके साथ बातचीत कर रहा है कि पहले उसको ख़त्म करोगे, फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुज़ारोगे, तो लानतें जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। और खुदावंद की जो बरकत है हमारी ज़िंदगी में, कसरत की ज़िंदगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का लहू क्या है? वो ज़िंदगी देता है। तो जहाँ-जहाँ ये लहू जो है वो लगाएँगे, वहाँ ज़िंदगी आना शुरू हो जाएगी। वहाँ से बर्बादी जो है, उजाड़पन जो है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे ज़िंदगी आना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए लहू जो क्या करता है जब हमारे बदनों में जाता है, तो ये बीमारी जो हमें मौत की तरफ लेके जा रही होती है, वहाँ पे वो ज़िंदगी में तब्दील कर देता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का ये लहू जो है वो लेना और अपने बदनों के ऊपर या अपनी चीज़ों के ऊपर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ये सारी लानतें किसकी तरफ लेके जा रही हैं? ये उजाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारा सत्यानाश करने के लिए, हमारे घरों को उजाड़ने के लिए आती हैं। मौत की तरफ, आग की तरफ, जहन्नम की तरफ लेके जाने के लिए ये लानतें आई हैं। तो जब हम लहू लगाएँगे तो वो ज़िंदगी आना शुरू हो जाएगी, बरकत आना शुरू हो जाएगी। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और मुझे भी फ़ज़ल दे कि हम फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुज़ारें। जी, बैक टू श्रेया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें सिखाया है कि हमने अपनी जो ज़ुबान है उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है और हमने कैसे इसका सही जो दुरुस्त इस्तेमाल है वो कैसे हमने करना है और इसके जो नताइज हैं, अच्छा बोलने का, मुस्बत बोलने का जो नताइज है वो खुदा ने हमें अपने पाक बंदी के ज़रिए से हमें बताए। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। सो आए बरकतें और लानतें जो हैं बरकतें हासिल करने के लिए और लानतों को दूर करने के लिए हम समरीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि समरीन आए और आगे जो प्रेयर है, जो भी खुदावन ने उसके पाकरू ने इसके दिल में डाला है, वो आज हमारे साथ जो प्रेयर है वो शामिल होंगी इन तमाम बरकतों को हासिल करने के लिए और लानतों को अपनी जिंदगियों से काटने के लिए, जड़ से काटने का, वो बीमारी की है, का वो परेशानी की है, ब्लड प्रेशर की है, लाइलाज बीमारी की है, किसी भी तौर से डिप्रेशन की है, ब्लड प्रेशर की है, शुगर की है और हेपेटाइटिस सी की है, HIV है, जो भी है, जो भी लाइलाज बीमारियां हैं, हम उनको समरीन के साथ मिलकर हम सब इस दुआ में हम शामिल होंगे और उसको हम बैक जो सपोर्ट है वो देंगे अपने अल्फाजों से। हालेलुया, यस लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया के नारे हम लगाएंगे जिस तौर से दाऊद ने फतह हासिल की। आज हम भी अपनी रूहानी, जिस्मानी, एजुकेशनली, फाइनेंशियली फतह को, ब्रेक थ्रू को अपनी जिंदगी में हासिल करेंगे यीशु मसीह के नाम से। यस माय लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो। हम समरीन के साथ इस दुआ में शामिल होंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जिसकी तरफ इनके हालेलुया। सर में दर्द है उसके लिए प्रेयर करना। जी, और कोई? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, एलर्जी ले प्लीज। हाँ जी, मेरी कजन हूँ ते मैनू भी ज्यादा एलर्जी है, एलर्जी वास्ते प्लीज प्रे करें। सिस्टर अंजना, हाँ मुझे जी। समझ नहीं आया, यहाँ बच्चे भी शोर अ, करें, दोबारा रिपीट करना।
एलर्जी वास्ते खारिश हो रही है ना काफी अच्छा अच्छा दिनों तो। हाँ जी, एलर्जी ਲਈ स्किन एलर्जी ਲਈ। और ਹਾਂਜੀ सिस्टर सिस्टर सारा सैमुअल है, उनके एग्जाम के लिए 14 को उनका रिजल्ट आना है, जो उन्होंने दिया था। किरण ने भी एग्जाम दिया 14 को, दोनों का, सारा का और किरण का रिजल्ट आना है। उसके लिए हम प्रेयर करके खुदावन उनको कामयाब करे। आमीन। मेरे जी लिए प्रेज द तो लॉर्ड। 3 दिन प्रेज द हो गया, लॉर्ड। मेरे ना कंधों में बहुत दर्द है। ठीक हाँ है। जी प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी सिस्टर जी मेरे ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਯੂਟਰਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਮੀਨ। जी ओके, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो खुदावन। खुदा तू मेहरबान, तू कदूस, तू रहीम, तू जिंदा, तू कादिर खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, दिल की गहराइयों से खुदावंद। खुदा हम तुझे मुबारक कहते हैं, तू जो पाक है खुदावंद, तू जो हिकमत का मंबा है खुदावंद। खुदा तू सच्चाई का खुदा है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरे खुदा बड़े बड़े कामों को बयान करते हैं खुदावंद। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तू कुदरत वाला खुदा है, तू बड़े अजीब काम करता है खुदावंद, तू मौजज़ात का खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। खुदावंद खुदा तेरे जैसा कोई नहीं, हम तेरी बड़ाई करते हैं खुदावंद। खुदा तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालाला शिंतरो राबारा बारा 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 शिंतरो री रा 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 रा। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी तारीफ हो खुदावंद। खुदा खुदावंद खुदावंद खुदा हम सबसे पहले खुदा बाप हम अपने पूरे ग्रुप को खुदावंद बाप यीशु के लहू में छुपाते हैं खुदावंद, उस कीमती लहू में जो यीशु के लिए जो यीशु ने हमारे लिए बहाया, उस खून में खुदावंद खुदा अपने पूरे तमाम ग्रुप को, उनकी फैमिलीज को, और खुदावंद हम सब जहाँ बैठे हैं खुदावंद खुदा उस जगह को हम यीशु के लहू में छुपाते हैं, यीशु के लहू में डुबोते हैं, यीशु के लहू से धोते हैं खुदावंद खुदा। खुदावंद बाप तूने अपने इकलौता बेटा हमारे लिए बख्शा खुदावंद, तूने हमसे इस कदर मोहब्बत की, तू हमें हर तरह से खुदावंद खुदा पाक आजाद और खुदावंद खुदा हर तरह से क्लीन प्योरीफाई तू हमें देखना चाहता था खुदावंद। और तू जानता था खुदावंद कि बछड़ों बकरों बैलों की कुर्बानी जो है वो हमारे गुनाहों को धो नहीं सकती, वो हमें लानतों से बचा नहीं सकती, वो हमें गुरे में से निकाल नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू, बेअब बर्रे का लहू जो हमारे लिए तूने हमें दे दिया, तूने खुदा बाप तूने अपना बेटा, इकलौता बेटा हमें दे दिया, उसका लहू हमारे लिए बहा, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। तूने ऐसी कुर्बानी का हमारे लिए बंदोबस्त किया खुदावंद खुदा, उस कुर्बानी के वसीला से आज हम आजाद हैं, आज हम रिहाई पाते हैं, आज हम हर लानत पे गालिब आए हैं। आज हम इख्तियार के साथ बदरूहों को डांटते झिड़कते और वो उससे दूर भागते हैं। आज हम इख्तियार के साथ जो है बंद कर देते हैं। आज हम इख्तियार के साथ सारी डोरियों को, सारे ऐसे बंधनों को जो गलत हैं, जो खुदावन जो अबलीस की तरफ से हैं, हम उसे आज उस यीशु के खून के वसीला से जो हमें इख्तियार मिला है, हम उसके साथ उसे कैंसल करते हैं, अपने आप को आजाद करते हैं। आज हम उन हर तरह की जो नस्ल दर नस्ल जो लानतें जो हमारे पीछा करती है, आज हम उस लानत को भी, उस लानत से भी, उन लानतों से आजाद होते हैं। और किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ यीशु तेरे खून के वसीला से, क्योंकि तेरे लहू में शिफा है, तेरे लहू में फतह है, तेरा लहू जो है वो पाक है, तेरा लहू धोता भी है, पाक भी करता है, बचाता भी, छुड़ाता भी है। तेरा लहू ऐसा जो है ऐसी जाम है जो हमें हर तरह से मामूर करती है। जब वो हमारे बदन में जाता है,
हमारी नस नस, हमारे गुदा गुदा, हमारी रूह बदन जान शिफा पाती है। हम नया जोर पाते हैं, हम रूह Yes. से मामूर होते हैं, हम Yes. धुलते जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं Yes. खुदावंद। हमारे आगे जो सहरा जो बियाबान है वो भी सहराओं में जो है बदल जाता है। हमारे आगे कुछ चट्टाने जो है वो उनमें से भी पानी के चश्मे फूट निकल आते हैं। हालेलुया। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस कीमती लहू के लिए। ऐ यीशु तेरे लिए कि तूने Yes. हमसे ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत कोई इंसान हमसे कर नहीं सकता। तू हमारी हर तरह से फिक्र करता है, तुझे हमारी फिक्र है, थी Yes. और हमेशा रहती है खुदावंद। तू हमेशा आज भी हमारे लिए वैसी ही वही जज्बात रखता है जो तूने कोई इतने सदियों पहले तेरे दिल में थे कि तूने अर्श को छोड़ा, तू हमारे लिए जमीन पर आया। तूने अपने अपने तख्तो ताज की परवाह नहीं की, तूने अपने अपने रुतबे की परवाह नहीं की। तू नीचे हो गया, तू झुक गया, हमारे लिए खाकसार हो गया और हमें तूने खाकसार होना सिखाया। तूने हमें बताया कि झुकने से जो है कोई किसी का तख्त कम नहीं होता, बड़ा वही है जिसमें यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो तेरे साथ चलता है, जो तेरी पैरवी करता है, उसको तू वो बढ़ता जाता है, वो कभी पीछे नहीं रहता, वो कभी सूखा हुआ पेड़ नहीं रहता। खुदावन के नाम से उसमें फल लगता है, वो तरक्की करता है, उसमें बरकत उसकी जिंदगी में आती है, क्योंकि उसने किसी और खुदा को नहीं, उसने किसी बाल को नहीं, उसने किसी तरह के भी गैर मबूद को नहीं, बल्कि उसने खुदावंद यीशु नासरी को चुन लिया है। हालेलुया। हम खुदावंद इस चुनाव के लिए खुदावंद खुदा, जो कि हमने नहीं बल्कि तूने खुद किया, हमने तुझे नहीं खुदावंद, तूने हमें चुन लिया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। इस ये सिलेक्शन खुदावंद खुदा हमारे से पहले तूने की खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने बहुतों से पहले खुदावंद हमें सिलेक्ट किया, हमें निकाला, हमें चुना कि तो हम तेरी सताइश करेंगे। आज जो हम इकट्ठे हैं खुदावंद, हम अपनी नहीं बल्कि तेरी मर्जी से हैं। पाकरू तूने हमें इकट्ठा किया, तू जो आवाज हमें देता है, हम शुक्र अदा करते हैं कि उस आवाज को हम फॉलो करते हैं, हम तेरी सुनते हैं और हम इकट्ठे हुए हैं खुदावंद। तूने हमें तौफीक बख्शी कि हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। ऐ बाप, तेरा शुक्र हो तेरी शफकत के लिए, तेरे अजीब कामों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमें सब कुछ मुहैया करने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप, आज यीशु के नाम से हम उन सारी बातों को एक दूसरे की जिंदगी से खुदावंद, हमारे ग्रुप में मौजूद सारी फैमिलीज, वफा बाजी की फैमिली को, सेड्रिक फैमिली को, सिस्टर शाहीन की फैमिली को, सिस्टर सोनिया की फैमिली को तेरे खून में छुपाते हैं खुदावंद। सिस्टर सराफीन की फैमिली को तेरे खून में छुपाते हैं, निदा बाजी की फैमिली को, सबा बाजी की फैमिली को खुदावंद तेरे खून में छुपाते हैं, सनिया की फैमिली को, सिस्टर अरूसा की फैमिली को तेरे खून में छुपाते हैं खुदावंद। सुनैना की फैमिली को तेरे खून में छुपाते हैं, सिस्टर अंजना की फैमिली को तेरे खून में छुपाते हैं, सिस्टर महेंद्र, सिस्टर वृंदा की फैमिली को तेरे लहू में छुपाते हैं खुदावंद। और आज खुदावंद खुदा मिलकर खुदावंद सारे इख्तियार के साथ जो हमें यीशु नाम के वसीला से मिला है, हम उन सारी बातों को जो हमारे लिए गलत बोली गई उस्तादों के जरिए से खुदावंद खुदा, डॉक्टर्स के जरिए से खुदावंद, कुलीग्स के जरिए से, दोस्तों के जरिए से खुदावंद, जितने भी नेगेटिव वर्ड्स आज बचपन से लेकर अब तक या हमारी पैदाइश से पहले खुदावंद, जब कभी हम खुदावंद केयर के लिए गए खुदावंद, तब कोई ऐसे अल्फाज बोले गए हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए खुदावंद खुदा, हम उन सारे गलत अल्फाजों को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, जो हमारी जो हमारे प्रोफेशंस में हमें कामयाब होने से, बढ़ने से रोकते हैं, जो हमें हमारे बदन को कमजोर करते हैं, बीमार रखते हैं, वो बीमारी की लानत, वो कमजोरियां खुदावंद यीशु के नाम से उनको कैंसिल करते हैं। यीशु के लहू को सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक मांग लेते हैं, क्योंकि यीशु के लहू में मुकम्मल शिफा है, यीशु के लहू में मुकम्मल फतह है। यीशु का लहू जो है हमारी
क्लींजिंग करता है, हम अपने आप को उस खून से धोते, अपने खानदानों को धोते और एक दूसरे को खुदावंद यीशु के नाम से आजाद करते हैं। उन उन अल्फाजों के जरिए जो बेड़ियां, जो जंजीरें बंध गई हमारी जिंदगी के साथ, जो बंधन बंध गए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बंधनों को आज खोलते, तोड़ते, अपने अपने हाथों पैरों को, अपने खानदानों को उन बेड़ियों से आजाद करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावंद खुदा उस सारे असर को खुदावंद जो किसी तरह से खुदावंद हमारी जिंदगी को खत्म करने के लिए जो खुदावंद जो बीमारी के बारे में बातें बोली कि क्या हमारी जिंदगी में ये जनरेशनल डिजीज है, ये चलेगी, हम उस डिजीज को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हम उस से हमारे घरानों में से इसी वक्त निकले यीशु के नाम से। कोई इख्तियार नहीं है कि हमारी जिंदगी में किसी का वजूद है तो वो खुदावंद यीशु नासरी तेरा है। हालेलुया। है खुदावंद और किसी की जगह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। है खुदावंद खुदा किसी भी रिलेशनशिप के जरिए, खुदावंद किसी टीचर के जरिए, खुदावंद खुदा या किसी भी खुदावंद फ्रेंड सर्कल, किसी कम्युनिटी, किसी तरह की खुदावंद कंपनी में बैठने या किस तरह की सोसाइटी में बैठने की वजह से खुदावंद खुदा अगर कोई ऐसे वर्ड्स बोलेगे जिसमें खुदावंद हमें जिससे खुदावंद खुदा हमारी जिंदगियों में या हमारे बच्चों की जिंदगी में आवारगी की, बदगुमानी की और खुदावंद बदतमीजी की या काहिली की, खुदावंद पढ़ाई में, एजुकेशनल सिस्टम में जो उनकी जिंदगी में रुकावटें आई हैं, ऐसी कोई बात बोली गई है जिसकी वजह से खुदावंद आज वो सफर कर रहे हैं, सफरिंग आ रही है खुदावंद खुदा, तो हम उसे यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। जो इमोशनली तौर पर खुदावंद जिंदगी पे अटैक कर रही हैं, जो जज्बाती तौर पे खुदावंद खुदावंद कमजोर कर रही हैं, जो है खुदावंद ढिठाई की स्पिरिट है, जो नाफरमानी है, जो बातों को रिसीव ना करना, नसीहत को कबूल ना करने वाली स्पिरिट को यीशु के नाम से उसके मुंह को बंद करते हैं और इस लानत से खुदा अपने घरानों को यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद करते हैं। आज इस लानत के अपने घरानों में से, उनकी जिंदगियों में से यीशु के नाम से हम निकाल बाहर करते हैं। हालेलुया। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम इन सारी तासीरों को खुदावंद तेरे हाथों में, हाथों के कीलों में जड़ देते हैं यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद मसीह की मोहब्बत, खुदावंद ईमान की मजबूती को हम खुदावंद अपने घरानों में मांगते हैं, अपने ग्रुप में मांगते हैं, कामयाबी को यीशु के नाम से मांगते हैं, खुदावंद सरफराजी को यीशु के नाम से मांगते हैं, खुदावंद सारी कुंद ज़हनी की लानत यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की खुदावंद यीशु के नाम से ये बीमारी जाती रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद खुदा यीशु के नाम में खुदावंद हमारे बच्चे, हम यीशु के नाम से एक्टिव हो, यीशु के नाम से ज़हीन हो। खुदावंद खुदा सुलेमान सी खुदावंद खुदा दानिशमंदी यीशु के नाम में एक दूसरे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदावंद सरफराजी उससे फेवर मांगते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद खुदा अपने लिए है, खुदावंद तमाम ग्रुप और है खुदावंद सारी फैमिलीज के लिए खुदावंद यीशु के नाम में पालूस सी खुदावंद खुदा पालूस जैसा फजल मांगते हैं यीशु के नाम में। हम भरपूर करते हैं सब खाली जगहों को खुदावंद खुदा, जिंदगी की उन सारे मकामों को रूहानी तौर पे भी खुदावंद तेरे मसा से मामूर करते हैं खुदावंद यीशु के नाम में। तेरे मसा जाए खुदावंद, मसा का तेल उंडेल खुदावंद सरों पर और खुदावंद तेल से भिगो दे, उस पे तेल से डिबो दे खुदावंद खुदा। खुदावंद हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए खुदावंद अच्छे जज्बात हों यीशु के नाम में, बरकत के अल्फाज हों यीशु के नाम में, एक दूसरे के लिए जब बोले खुदावंद खुदा तो ब्लेसिंग्स को मांगते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद पाक रूह की जुम्बश हमारे पर हो रही हो, हमेशा होती रहे और यीशु के नाम में एक दूसरे के लिए हम बरकत पे बरकत मांगते जाएं, एक दूसरे को बरकत देने वाले हों, हमारे अल्फाजों में असर हो, पाक रूह की मामूरी को मुकम्मल तौर पर खुदावंद अपनी जिंदगी में, अपने खानदानों में, अपने घरानों पर मांगते हैं। तेरा अबर हमेशा हमारे घरानों पर ठहरा रहे, पाक
पाक रूह की बारिश हमेशा हमारे घरानों पर होती रहे खुदावंद खुदा। जैसे तू इसराइल के साथ साथ था, बनी इसराइल के साथ था खुदा, वैसे ही तू हमारे भी साथ साथ रहना खुदावंद खुदा है। खुदावंद हम तुझसे वो कुवत मांगते हैं, वो इख्तियार मांगते हैं खुदावंद, जैसे एलिया ने खुदावंद खुदा तेरे नाम से खुदावंद खुदा ये कहा था कि खुदा के जब खुदावंद वो दुआ करेगा, जब वो मर्दे दुआ जब दुआ करेगा तो तब बारिश हुई थी खुदावंद। हमारे अल्फाजों में भी, हमारी दुआओं में भी ऐसा असर हो खुदावंद कि जब हम तुझसे दुआ करें खुदावंद तो आसमान खुल जाए और यीशु के नाम यीशु के नाम हो, तेरे लोग आजाद हो, तेरे लोगों के घरानों में बरकत की नदियां जारी हो जाएं, चश्मे जारी हो जाएं। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यीशु के नाम से। कमजोर ईमान वाले भी यीशु के नाम में जोर पाए और वो जान जाए कि ये तू ही हमारा खुदा है और तेरे सिवा हमारी कोई चट्टान नहीं। प्रेज द लॉर्ड। है खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद खुदा। खुदावंद खुदा है, खुदावंद तेरे हजूर दुआ करते हैं खुदावंद के, है खुदावंद खुदा जहाँ कहीं कभी खुदावंद खुदा हमने तुझसे ऐसे वादे किए हैं, ऐसे प्रोमिसेस किए हैं, ऐसे खुदावंद तेरा कमिटमेंट की कि खुदावंद हम तेरे लिए ऐसा करेंगे, तुझे दायकी देंगे, तुझे हदिया देंगे, शुक्रगुजारी करेंगे खुदावंद, और आज तक हम उसको पूरा नहीं कर सके खुदावंद, और उस वजह से भी खुदावंद हमारी जिंदगी में कोई लानत आ रही है खुदावंद, हमारी जिंदगी में खुदावंद हमारी बरकतों में रुकावटें आ रही हैं खुदावंद। तो आज हम उन खुदावंद खुदा लानतों को ब्रेक करते हैं, यीशु के नाम में उन्हें कैंसिल करते हैं खुदावंद, और तुझसे माफी खुदावंद जिन कमिटमेंट पूरा नहीं कर सके खुदावंद। कहीं पे अगर खुदावंद हमने ऐसी कमिटमेंट की, हमने किसी अपने बच्चे को खुदावंद पैदा होने से पहले तुझे दे दिया, तुझसे ये कहा कि खुदावंद ये तेरा है, ये तेरे लिए होगा, और हम उससे नहीं दे सके खुदावंद, तो उसके लिए तुझसे माफी मांगते हैं खुदावंद। तू हमें माफ कर और इस खुदावंद उस नाफरमानी, उस डिसकमिटमेंट की खुदावंद लानत को अपने ऊपर से, अपने सरों से, अपने बच्चों के सरों, अपनी गर्दनों से हटाते हैं यीशु के नाम में। इस जुए को हटा और हमें नर्म और मुलायम जुआ अता कर यीशु के नाम में, हमें आजाद खुदावंद। खुदावंद आइंदा के बाद खुदावंद अपने लोगों को हिकमत देना खुदावंद के हम जो तेरे नाम, तेरे लिए जो हम कहें खुदावंद, हम उसे पूरा करने वाले बने खुदावंद खुदा। जितने प्रोमिसेस, जितने वादे खुदावंद हम तेरे साथ करके तोड़ चुके हैं, उन्हें पूरा नहीं हमने खुदावंद, और उसकी वजह से जो कर्ज हमारी जिंदगी में आ रहा है, जो लानत हमारी जिंदगी में हमारे पीछे लगी है, आज हम उसको भी यीशु के नाम में याद करते हैं, तो उसको, सारी लानत को तोड़ते और सारी लानत को ब्रेक करते, उस कर्ज को ब्रेक करते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद तू हम रहम कर, तू हम पर रहम कर, हमें आजाद कर खुदावंद खुदा, अपने लोगों को माफ कर खुदावंद खुदा। खुदावंद हमसे जाने अनजाने में खुदावंद या जज्बाती तौर पर खुदावंद ऐसे वादे हो गए, ऐसी बातें हमने तुझसे कह दी कि हम तेरे लिए ऐसा करेंगे, अब नहीं कर सके खुदावंद, उसके लिए तू अपने लोगों को माफ कर खुदावंद खुदा। अब तू रहीम है, तू मेहरबान है, तू रहम करता है खुदावंद, हम पर अपने रहम को खुदावंद बड़ी कसरत से उंडेल खुदावंद। हमें तेरी जरूरत है खुदावंद, हमें खुदावंद, हम अब बशर हैं खुदावंद खुदा, और खुदावंद हमसे खताएं हो जाती हैं। तेरे कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जिसकी गुनाह खुदावंद खातर में भी नहीं लाता, तू नजर भी नहीं करता। अदा करते हैं कि खुदावंद तू हमारी बहुत सी कोताहियों को खुदावंद खुदा तू पीछे कर, तू देखता भी नहीं खुदावंद, और हमारे गुनाहों को तू हमसे इतना दूर फेंक देता जैसे जितना पूरब पश्चिम से दूर है। आज हम अपनी सारी लानतों को, अपने सारे गुनाहों को, अपनी डिसकमिटमेंट्स को, अपने ब्रोकन प्रोमिसेस को, तोड़े हुए वादों को, उनको खुदावंद बांधते, बाइंड करते, सारे कर्ज, सारी लानतों को बाइंड करते, और यीशु के नाम खुदावंद उन्हें इतना दूर फेंक देते हैं जितना पूरब पश्चिम से दूर है यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इनका असर, इन सारी गंदी चीजों का असर भी हमारी जिंदगी या हमारी नस्लों पर ना हो यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदावंद खुदा, ऐसा हमने कभी अपने बच्चों के लिए बोला या उनकी किसी मौत के लिए हमने कोई ऐसे अल्फाज बोल दिए, कोई गलत बात बोल दी, हम उसे भी यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। कहीं खुदावंद खुदा हमने इनकी पैदाइश से पहले इनको एक्सेप्ट करने में खुदावंद खुदा देर की, कैंसिल करते
हासिल करते हैं यीशु Lord. के Yes, Lord. नाम में, और अपने यीशु के आप नाम को और अपने बच्चों को खुदावन खुदा इस गंदगी से, इस तरह की इस लानत से, इस कर्ज से आजाद करते हैं, उनकी जिंदगी को, उनकी रूह को आजाद करते हैं, और यीशु के नाम में एक दूसरे के लिए बरकत मांगते हैं, बरकत मांगते हैं खुदावन खुदा। हमारी जिंदगियों का, हमारी रूहों का जो हिस्सा खुदावन आज भी बंजर पड़ा है, तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद उस पाक रूह का हल चला खुदावंद, और ऐ खुदावंद वो बंजरपन खुदावंद यीशु के नाम से जाता रहे, खुदावंद यीशु के नाम से जाता रहे खुदावंद खुदा। एक बार फिर खुदावंद खुदा फाइनेंशियल जुए को खुदावंद यीशु के नाम में तोड़ते हैं खुदावंद, यीशु के नाम में खुदावंद अपने आसमान के दरीचे खोल, अपने आसमान के खजाने खोल खुदावंद, और अपने लोगों को खुदावंद बरकतों से माला माल कर खुदावंद खुदा। जहाँ कहीं खुदावंद खुदा किसी एजेंसीज में काम हो रहा है खुदावंद, जहाँ कहीं बिजनेस ओपन हुए हैं खुदावंद, जहाँ कहीं जॉब्स हो रही हैं खुदावंद, जहाँ कहीं बेरोजगारी है खुदावंद, जहाँ नई एम्प्लॉयमेंट है खुदावंद, उस सारी जगहों पे, उन प्लेसेस पे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में तेरे लहू को मांगते हैं, यीशु के लहू को मांगते हैं। तेरे लहू में खुदावंद उन सारी चीजों को, उन सारी सोच को, उस सारे फाइनेंशियल खुदावंद इश्यूज को खुदावंद, और उन सारे फाइनेंशियली तौर पे जो खुदा फाइनेंस के जरिए हैं खुदावंद, जरायों पर खुदावंद खुदा तेरे खून को मांगते हैं यीशु नासरी। यीशु तेरे लहू में उन सारे जरियों को हम डुबो देते हैं, और यीशु के नाम में खुदावंद सारी खुदावंद खुदा फाइनेंस को हर तरह की लानत, हर तरह की बुरी नजर से पाक करते हैं यीशु के नाम में। सारी बेड़ियां जो हमारे अखराजात को, हमारे रुपए पैसे को पकड़े हुए हैं खुदावंद यीशु के नाम में, आज वो बेड़ियां, वो जंजीरें, वो सारे बंधन, वो डोरियां सारी गहराओं से भी आजाद हो ऐ खुदावंद। तेरे लोग आसमानों पे जो बंदे हैं खुदा, जो आसमानी मकामों पे जो दुश्मन की तारीखी की फौजों ने बांध रखे हैं यीशु के नाम से, उनसे भी आजाद हो हम। ये समुंदर की गहराइयों में से भी हमारे पीछे लगी, उनसे भी आजाद हो यीशु के नाम में। मगरिब, शमाल, जनूब से हमारे लिए यीशु के नाम में बरकतें जारी हो, फाइनेंस दे जाए यीशु के नाम में, उन पर तेरा हाथ बढ़ा रहे यीशु के नाम में। हमारी खुदावन जब उसे खाएं खुदावन खुदा, तो हमारी जिंदगियां भी पाकीज़गी की तरफ माइल होती जाएं यीशु के नाम में। खुदावन खुदा रुकी भी खुदावन खुदा तरक्की यीशु के नाम में खुदावंद आज खुल जाए, वो बंद दरवाजे, वो बंद दरीचे, वो बंद ताले खुदावंद यीशु के नाम में खुल जाए। गरीब रहने के लिए नहीं बुलाए गए खुदावंद, तूने हमें शाही कायनों का फिरका कहा है खुदा तेरे होते हुए खुदावंद हम किसी नेमत, किसी बरकत के मोहताज नहीं है खुदावंद, और जिसके साथ खुदावंद खड़ा है उसके हालात तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद तब्दील कुदरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद अपने सारे तंगदस्ती के हालातों को तेरे आप सामने रखते हैं खुदावंद, जो जहां कहीं सफर कर रहा है खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद आज वो आजाद हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में आज उसके लिए बहाली मांगते हैं, उसके बिजनेस में, जॉब प्लेसेस में, हर तरह की खुदावंद खुदा किसी भी जगह पे खुदावंद, चाहे कोई भी कारोबार है खुदावंद यीशु के नाम में उस पर तेरा हाथ बढ़ा रहे खुदावंद, अपना हाथ बढ़ाकर खुदावंद बरकत दे, अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, अपने खुदावंद तू खुद खड़ा हो जा खुदावंद खुदा, अपने लोगों को बहाल करने के लिए, अपने लोगों को भरने के लिए, अपने लोगों की खाली झोलियां भर यीशु के नाम में, खाली जेब भर दे यीशु के नाम में। खुदावंद तेरे लोगों की कमाइयों में बरकत पे बरकत हो, डबल बरकत हो यीशु के नाम में। खुदावंद हम कर्ज लेने वाले बल्कि कर्ज देने वाले बने यीशु के नाम में। सारी बीमारियां, सारी से जिंदगी में से, घरों में से, घरानों में से, रूह बदन जान में से जाती रहे यीशु के नाम में। तेरे लोग बरकत पाए, आजाद हो यीशु के नाम में। हमारा रुपया पैसा बीमारियों पे जाया ना हो, हमारा रुपया पैसा खुदा परेशानियों में ना जाए, बल्कि यीशु के नाम में तेरे लोगों के लिए खुदा अच्छा खजाना जमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बनाने और जोड़ने वाले और बढ़ने वाले बने यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। खुदावन खुदा इस एलर्जी की स्पिरिट को खुदावन जो तेरी बंदी को तंग किए हुए है यीशु के नाम में, हम उसे हुक्म देते हैं कि वो इसी वक्त बदन में से निकले यीशु के नाम में। यीशु के नाम में खून को मांगते हैं खुदावन उस बदन के उस एरिया में खुदावन जहाँ पे ये तंग कर रही है, जहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है, जहाँ
जहाँ पे तेरे लोग सफर कर रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद ये एलर्जी की स्पिरिट, इसका मुंह बंद करते हैं, इसकी जड़ों को, इसकी शाखों को सूख जाने का हुक्म देते हैं और इससे निकल जाने का हुक्म देते हैं यीशु के नाम में। इसका बदन पे कोई इख्तियार नहीं है, यीशु के नाम में ये अपनी सारी गंदगी के साथ बदन में से बाहर निकल जाए। हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में जीसस, तेरे लहू से धोते और तेरे लहू से पाक करते हैं इस बदन को। हमारा ईमान है खुदावन कि तू मौजूद है और तू हमारी दुआएं सुन रहा है और तू हमारे लिए काम कर रहा है। हमने जो मांगा है वो हमारे लिए हो गया है। खुदावन का सम्मान है, खुदावन की हजूरी यहाँ पर है। यीशु के लहू से हम धुले, यीशु के लहू से हम पाक हुए, यीशु के लहू से हम आजाद हुए, यीशु के लहू से हमने फतह पे फतह पाई है। मौत से फतह से बढ़कर गलबा खुदावन ने हमें दिया है। हमारे मौत के डंक को कुचल डाला है। खुदावन ने हमारी हार को जीत में बदल डाला है। खुदावन ने हमारे मातम को नाच में बदल दिया है। यीशु के नाम में आज हम आजाद बहाल हैं। खुदावन यीशु के नाम में आज हमने हिकमत पाई है। यीशु के नाम में हमने रिहाई पाई है। यीशु के नाम में हमें बरकत पाई है। यीशु के नाम में हमने शिफा पाई है। यीशु के नाम में हमारी जिंदगी में तब्दीली आई है। यीशु के नाम में हालेलुया, हमने नया जोर पाया है खुदावन यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तेरा शुक्र हो खुदावन। हमने कलाम पाया है खुदावन यीशु के नाम में। हमने इस बरकत को रिसीव करते हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में। और खुदावन तेरी बंदी से शहीन के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके घर के हर एक फर्द के लिए यीशु के नाम में बड़ी बरकत और तेरी फेवर और तेरा फजल मांगते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, खुदावन उनकी फैमिली भी है खुदावन, खुदा जिन जिन एरियाज में सफर कर रही है, जहाँ कहीं खुदावन रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, फाइनेंशियली तौर पर, खुदावन यीशु के नाम में आज उन बंद दरवाजों को खोलते, उन तालों को तोड़ते, उन बेड़ियों से उनको आजाद करते हैं यीशु के नाम, यीशु के नाम में। है खुदावन ये घराना तुझ में बड़े तरक्की पाए खुदावन, खुदा, और बड़े तेरे नाम को जलाल देने का खुदावन, तेरे नाम को जलाल मिलता जाए इनकी जिंदगियों से यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम में ये सब कुछ मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू टू दी। मैंने खुदा उनकी हुजूरी को बड़े जोर से देखा और शुरू में मैंने देखा है जो ऐसे पानी जो है बहुत मैंने देखा है कि जैसे दो पहाड़ हैं दरमियान से ऐसे जैसे पानी बड़े जैसे कह लें प्रेशर से निकला है। यानी जो उस वक्त दीदी लानतों को कैंसिल कर रही थी और खुदा यीशु मसीह का लहू मांग रही थी, पाकीज़गी मांग रही थी। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद ने हमें पाक और साफ किया और सारी जो लानते हैं, सारे जो किसी भी सूरत में हैं, बीमारी की या डिप्रेशन की, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम है, खुदावंद ने हमें आज बहाल किया है, आज़ाद किया है और खुदावंद ने पाक और साफ किया है। और जब इसके लिए प्रेयर कर रही थी कि स्किन की प्रॉब्लम, तो मैंने जब ये इसने की है शाखें, तो मैंने ऐसे देखा कि जैसे कह लें कि एक स्किन कह लें या बदन वो देखा उसके अंदर से जैसे एक बाहर यानी एक नजर आ रहा है कोई जैसे कह लें कि एक स्किन की झिल्ली जैसी है जो, लेकिन उसके अंदर वाकई ही शाखें हैं बहुत ज्यादा। तो लेकिन मैंने देखा है कि वो कट गई हैं, खुदावंद ने आज उनको काट दिया है, जिसकी भी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ये हो रही है, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम, खुदावंद ने उस वजह को और उन शाखों को जो कह लें हमारे बदन में फैली हुई हैं, तो उन शाखों को खुदावंद यीशु मसीह ने उसके नाम से, उसके लहू से काट दिया है। तो इसलिए मेरा ईमान है कि खुदावंद ने जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई खारिश है, कोई एलर्जी है, तो खुदावंद ने उनको आज़ादी दी है, बहाली दी है, शिफा जो है वो आई है। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद आज के कलाम से, आज के जो भी दुआ हुई है,
तो अगर आपको भी किसी ने किसी तरीके से खुदा ने टच किया तो आप शेयर कर सकते हैं। किसी को फील हुआ है कि खुदा ने मुझे शिफा दी है? हाँ दी, प्रेयर के वक्त। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। जी, किसी और को खुदा ने टच किया है, शिफा मिली है या हेलो। तसल्ली मिली हाँ है? जी। जी, जी श्रेया। समर जब होने वाली थी तो समर के मतलब पता चला हमें, तो मैंने इसके लिए ना मेडिसिन ले ली थी कि हम नहीं रखना चाह रहे थे, तो मेडिसिन ले ली, लेकिन इसके बावजूद भी, मेडिसिन खाने के बावजूद भी ये मतलब कह लो कि खुदावन की तरफ से मतलब ये जाया नहीं हुई और खुदावन इसको लेकर आया। तो मैं ऑलरेडी पहले ही इस बात के लिए, जब दीदी के प्रेयर करने से पहले ही मैं इस बात के लिए प्रेयर कर रही थी। सो जब दीदी ने प्रेयर की तो मुझे मतलब ये कह लो कि मुझे तसल्ली मिल गई, और मुझे मतलब मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो बात मैं पहले मांग रही थी, तो खुदावन ने मतलब दीदी के वसीला से भी इस बात को दोबारा इसको मतलब क्या कह लो कि 2 दफा इस बात को, इस दुआ को इसके मुंह से, मतलब पहले मैंने की, फिर दीदी ने इस बात के लिए की कि जो भी मतलब प्रेगनेंसी को आने से पहले ही मतलब जाया करना चाहता था ना, इस तरह से दीदी ने बोला। सो खुदावन का शुक्र हो कि हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है और वो दुआओं को सुनता और कबूल करता है। सो दीदी के वसीला से भी ये दोबारा दुआ जो है वो रिपीट हुई। मुझे एक तसल्ली मिली कि जो कुछ बोला गया, कहा जा रहा है कि मैंने भी इसके ब्लड में से जो भी इस मेडिसिन का जो असर था समर के, मैंने इसको मतलब खत्म किया, और दीदी ने भी इस बात को क्लेम किया। सो खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ हो यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। जी, किसी और ने कुछ अगर किसी को खुदा ने टच किया है? हाँ जी, प्रेज लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज गॉड। हाँ जी, ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਲਰਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी। गॉड ब्लेस यू। मैं जी, मैं भी कुछ रोसा। हाँ जी, रोसा। जब प्रे कर रहे थे तो अम्मी प्रेज सुन रही थी ना, तो अम्मी दीदी के साथ साथ जो जो दीदी बोल रही थी तो अम्मी बोल रही थी, तो अम्मी ना अपने एकदम से अपनी एलर्जी के लिए दुआ करना शुरू हो गए। उनको भी हम्म स्किन एलर्जी है, खारिश है ना, हम्म। तो मतलब वो भी दुआ कर रही थी। तो जैसे आपने कहा कि आज वो खारिश एलर्जी दूर हो गई, तो मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि खुदा ने उनकी दुआ को सुना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। शुक्र हो, खुदावंद अपने वादों में सच्चा खुदा है कि जो उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा। किसी भी तरह से कहीं पे भी हम किसी इसमें फंसे हुए, खुदावंद हमें निजात देने के लिए, शिफा देने के लिए मौजूद है। इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अभी भी टाइम है, अगर किसी ने कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है, नहीं तो फिर हम मीटिंग को बंद करें। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है सबकी हो गई है। तो सबको बरकत दे। गुड नाइट।